Good evening, Ashish. Good evening, Deepak. So today we'll cover up biological and chemical aspects of cavity preparation. Okay, and secondly will cover up dental caries. Basically, dental caries. They have asked about the recent diagnostic approach in dental caries, and dental caries its relation with the other branches also. Okay, three topics we'll cover up. So mostly the second topic is very important. Most of the questions are asked from the dental caries, recent diagnostic tools. Okay, so we'll start with the biological and chemical concept of cavity preparation. Have you gone through the topic? Okay, No, let's ma'am. begin. Okay, fine. Deepak, my screen is visible. Deepak, my screen is visible. मैम विजिबल है, मुझे तो विजिबल Okay, है. ठीक है ठीक है. We'll talk about the biological and chemical concept of cavity preparation. So we'll just revise. Okay, tell me cavity preparation, cavity designs. Na? So what are the classification for the cavity preparation? Deepak, what are the classifications for cavity preparation? Ashish, Yes, ma'am. classification of cavity preparation? Um, GV Black, you know, na? GV Black's classification, like, class 1, class 2, class 3, class 4, class 5, class हाँ. 6. Na? Huh? Yes, ma'am. It's a GV Yes, ma'am. Black's classification. हाँ. And second Yes. classification was Mountain Hume's classification, which was based on the site and size. Just a minute, I'll close the door. नहीं बेटे फिर नेट नहीं आएगा. नेट चला जाता है, बंद खोल उसको. Okay. So, cavity preparation. GV Black has given the classification class 1, class 2, class 3, class 4, class 5, class 6. Okay. This classification is basically for the amalgam restoration. Okay. But Yes. nowadays, uh, um, we have moved from amalgam to composite and better dental materials. Okay, and second classification was Mountain Hume's classification, which was given by, which was based on the site and size. ठीक है, इसमें था साइट में आपका it's on the occlusal pit and fissures, or it's on the contact area or in the cervical area, and depending on the size we divide it. Okay. Now, what do you mean by the biological concept and what do you mean by chemical concept of cavity preparation? हाँ, क्या केमिकल आता है दिमाग में कॉन्सेप्ट मैम. जब बायोलॉजिकल बोलते हैं तो क्या आता है? बायो कंपैटिबल Yes. मटेरियल. Yes, it वो will come जो. with the chemical concept of the cavity preparation. ठीक है, biological concept means कि देखो we know कि there's a enamel is there. ठीक है, it is a hardest tissue. हाँ, contains 96% of mineral content. ठीक है. Second, it is followed by the dentin. Dentin is soft. It acts as support for the pulp tissue. Pulp tissue is a very vascular tissue. ठीक है, जो कि ब्लड सप्लाई जिसमें रहती है, तो वी हैव टू प्रोटेक्ट द पल्प. पल्प प्रोटेक्शन इज नीडेड when we do the cavity preparation. Okay, and पल्प की प्रोटेक्शन के लिए जो इफेक्टिव डेंटिन थिकनेस होती है वो कितनी होती है बेटा? इफेक्टिव डेंटिन थिकनेस 0.5 mm. नो नो बेटा 2 mm. ठीक है, 2 mm. 2 mm. ठीक है, इफेक्टिव डेंटिन थिकनेस होती है 2 mm. ठीक है, अगर 2 mm से धीरे धीरे कम हो जाती है तो वी हैव टू गो फॉर द लाइनर एंड बेसिस. ठीक है, Yes. इफ इट इज मोर देन 2 mm, अगर पल्प के पास में 2 mm से ज्यादा डेंटिन है, ठीक है, मोर देन 2 mm और 2 mm, तो वी डोंट नीड टू अप्लाई एनी लाइनर और बेस. ठीक है, एंड Yes. इफ इट इज बिटवीन द
0.5 and 2, ठीक है. देन वी अप्लाई, वी नीड द एप्लीकेशन ऑफ द बेस, ठीक है. हमें बेस चाहिए होता है. अगर 0.5 से भी कम हो जाती है, देन वी नीड टू अप्लाई द लाइनर. लाइनर कैसा होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. आपने देखा है ना, जब हम इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग करते हैं या पल्प कैपिंग, तो हम सबसे पहले क्या लगाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाते हैं, है ना. ठीक Yes, है. उसके बाद हम कौन सा बेस देते हैं? ठीक है. बेस जैसे अगर हम अमलगम रेस्टोरेशन करें तो वी गिव बेस, किसका बेस देते हैं? जिंक फॉस्फेट GIC. सीमेंट का. ठीक है. फिर हम उसके GIC बाद भी हम, दे सकते हैं. हाँ, हाँ, GIC भी जी, दे सकते हैं. जी भी दे सकते हैं ना. मुझे जिंक फॉस्फेट दिया जाता है अमलगम में, ठीक है. तो जिंक फॉस्फेट दिया जाता है. फिर उसके बाद हम डेंटल टिब्यूज को क्लोज करने के लिए एक वार्निश अप्लाई करते हैं. देन वी डू कि आपका अमलगम रिस्टोरेशन, ठीक है. बट इन केस ऑफ कॉम्पोजिट, इफ वी आर गोइंग फॉर द कॉम्पोजिट, वी गो फॉर फर्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है. उसके बाद हम जीआईसी देंगे. फिर देन वी डू composite restoration. Why these all are doing, we are doing sandwich technique? Why we are doing sandwich technique? Because to protect the pulp, है ना. पल्प के प्रोटेक्शन के लिए हम कर रहे हैं सब. जस्ट अ मिनट. हेलो, आ रहा है, आ रहा है. नहीं, यही रख लो, यही रख लो, टेबल के नीचे रख लो, नहीं तो भूल जाएंगे, है ना. ओके, फाइन. सो there's a basically we need हम इतनी थिकनेस क्यों, हमें 2 mm से थिकनेस अगर कम हो जाती है तो what will happen? There will be a damage to the pulp through heat and mechanical trauma, chemical trauma, ठीक है. तो पल्प को डैमेज हो सकता है, ठीक है. इसलिए वी आर डूइंग सो मच कि हम उसे बेस अप्लाई करते हैं, वी आर गिविंग लाइनर्स, ठीक है. लाइनर्स क्या करते हैं? बेसिकली उसको हील करने मेडिकामेंट होता है. इट हेल्प्स इन द हीलिंग ऑफ द पल्प, ठीक है. डेंटिन फॉर्म करने में हेल्प करता है आपका टर्शरी डेंटिन, ठीक है. दीज आर द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कि हमें इफेक्टिव डेंटिन कितनी होनी चाहिए, ठीक है. एंड केमिकल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कैविटी प्रिपरेशन की. तो आप कौन सा, मतलब कौन सा सीमेंट यूज कर रहे हो, ठीक है. उसकी बॉन्डिंग कैसी है कैविटी के साथ. दीज ऑल आर थिंग्स. ओके, नाउ वी कम कि जीवी ब्लैक ने बेसिकली जो सबसे पहले आया था, फर्स्ट क्या यूज होता था? अमलगम यूज होता था या गोल्ड फॉइल यूज होती थी, है ना, रेस्टोरेशंस में. तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, अगर हम देखते हैं कैविटी प्रिपरेशन की प्रॉपर्टीज, तो क्या क्या रहती है जीवी ब्लैक्स की? वी हैव स्टडीड ना आउटलाइन फॉर्म, ठीक है. कि एक आउटलाइन फॉर्म होता है, ठीक है. अब कॉम्पोजिट में तो नहीं होता, है ना. वहां तो हम सिर्फ केरीज रिमूव करते हैं, एचिंग करते हैं एंड रिस्टोर कर देते हैं. लेकिन फॉर रेस्टोरेशन विद अमलगम एंड गोल्ड फॉइल वी नीड ए आउटलाइन फॉर्म, ठीक है. कि आपके प्रॉपर बक्कल एंड लिंगुअल एक्सटेंशंस होती थी, ठीक है. डफटेल्स होते थे. वॉल्स कैसी होती थी? कन्वर्जेंस वॉल्स होती हैं, फ्लैट फ्लोर होते हैं, राउंडेड लाइन एंगल्स होते हैं, ठीक है. पढ़ा था ना हमने. हाँ, Yes, ma'am. एक्सिल, हाँ, एक्सिल वॉल. एक्सिल वॉल वी नीड टू अप्लाई द बेस ओवर द एक्सिल वॉल. हम एक्सिल वॉल पे बेस लगाते हैं या फिर पल्पल फ्लोर पर बेस लगाते हैं, क्योंकि हम पल्प की प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है. और आपका जो केवो सरफेस एंगल है, व्हाट इज केवो सरफेस एंगल? व्हाट इज केवो सरफेस एंगल? इट्स अ वेयर द योर रेस्टोरेशन मीट्स विद द साउंड टूथ स्ट्रक्चर, ठीक है. तो अमलगम में कितना होता है केवो सरफेस एंगल? 90 डिग्री, ठीक है. ताकि आपकी रेस्टोरेशन को एक प्रॉपर थिकनेस मिले, ठीक है. डेंटिन मतलब टूथ स्ट्रक्चर का. और जो वीकेड एनामल थी दैट वी रिमूव्ड. दीज आर द आउटलाइन. ये सब हमने किस में पढ़ा था? कैविटी प्रिपरेशन में पढ़ा था, ठीक है. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कैविटी प्रिपरेशन. लाइक रिटेंशन फॉर्म, if we speak about the retention form, there are two types of retention form: primary and secondary, ठीक है. प्राइमरी रिटेंशन फॉर्म क्या होता है आपका? कन्वर्जेंस, कन्वर्जिंग वॉल्स, ठीक है. सेकंड रिटेंशन फॉर्म में क्या था? हमने ग्रूव्स देते हैं, पिंस देते हैं, ठीक है. ये सारे थे. और व्हाट इज रेजिस्टेंस फीचर? व्हाट इज रिटेंशन, व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रिटेंशन? क्या होते हैं रिटेंशन, रेजिस्टेंस?
मैम देखो, रेस्टोरेशन को रिटेन करने की प्रॉपर हाँ, देखो, जो रिटेंशन फीचर है, दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द कैविटी, ठीक है, कि उसमें उसको होल्ड करके रखता है, रिटेन करके रखता है, इट्स टुवर्ड्स द कैविटी, टुवर्ड्स द फ्लोर, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस फीचर क्या होता है, आपके रेस्टोरेशन को बाहर नहीं आने देता, दैट इज अवे फ्रॉम द अवे फ्रॉम द कैविटी। दिस पर्पल फ्लोर, है ना, फ्लोर से बाहर नहीं निकलने देता, दैट इज अ रेजिस्टेंस, ठीक है, बाहर आउटसाइड के लिए। एंड रिटेंशन इज इनसाइड फोर्सेस, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस फीचर में हमने क्या पढ़ा है, रेजिस्टेंस फीचर्स कैसे होते हैं, रेजिस्टेंस फीचर क्या होता है कि आपका बेसिकली फ्लैट फ्लोर्स हो गए, ठीक है, एक मिनट, जस्ट मिनट, रिकॉल, जस्ट मिनट, आई टेल यू, है ना, पूरा एक बार मैं आपको बता देती हूँ, आई थिंक सो यू विल ब्रश अप, ठीक है। रिटेंशन। ओके, ठीक है, देखो, फर्स्ट जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, तो आप कौन सा बार यूज करते हो, राउंड बार यूज करते हो, सेंटर में एक, है ना, पंच कट देते हो, ठीक है। उसके बाद आप उसको नीचे तक लेकर जाते हो, कहाँ तक, कितना डेप्थ में लेकर जाते हैं, 0.2 mm इंटू द डेंटिन, है ना, डीजे से 0.2 mm नीचे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसे कैविटी को एक्सटेंड करते हो, जो आउटलाइन फॉर्म की, ठीक है, आपकी बकल, लिंगुअल एक्सटेंशन सारी, ठीक है, मीजल, डिस्टल, एंड आपकी मार्जिनल रिज से कितनी दूर होनी चाहिए डॉक्टर, 2 mm, कि आपकी मार्जिनल रिज इंटैक्ट रहनी चाहिए, ठीक है। और रिटेंशन फीचर्स क्या होते हैं, जैसे अक्लूजल कन्वर्जेंस हो गया, ठीक है, दिस है प्राइमरी रिटेंशन फीचर्स, ग्रूव्स हो गया, स्लॉट्स, पिंस, ये सब क्या सेकेंडरी फीचर, सेकेंडरी। रिटेंशन फीचर्स हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस फीचर्स क्या होता है, जैसे कि 90 डिग्री केवो सरफेस एंगल हो गया आपका, अ, आपको, आप मेंटेन कर्व्स एंड मार्जिनल रिजेस हो गए, आपके राउंडेड इंटरनल लाइन एंगल्स हो गई, ठीक है। एंड रिमूव्ड अनसपोर्टेड वीकन इनामल हो गया, ये सब क्या आपके रेजिस्टेंस फीचर है, ठीक है। एंड थिकनेस कितनी होनी चाहिए अमलगम के लिए, मिनिमम थिकनेस, अब कोई भी कैविटी है ना, ये नहीं कि हमने बस थोड़ा सा हमने रिमूव किया, केरीज हम अमलगम डाल देंगे रुक जाएगा, ऐसा नहीं है ना, देयर इज ए प्रॉपर थिकनेस, मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 1.5 टू 2 mm कैविटी की डेप्थ होनी चाहिए, तभी अमलगम स्टे करेगा, अदरवाइज नहीं स्टे करेगा, उसे प्रॉपर ज्योमेट्री फॉर्म चाहिए अमलगम को, ठीक है, क्लियर, यस। ओके, आई शेयर द नोट्स विद यू पीपल, है ना, एंड एंड दिस इज द थिंग, ओके, ओके, एंड डेंटिन थिकनेस का मैंने आपको बता दिया है ना, फिर ये आपका आपका आउटलाइन फॉर्म हो गया, रिटेंशन फॉर्म हो गया, रेजिस्टेंस फॉर्म, देन कन्वीनियंस फॉर्म होते हैं, ठीक है, दैट यू नो, ठीक है। आपको ये मैंने बता दिया कि डेंटिन थिकनेस, रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस कितने होते हैं, 2 mm होती है, 2 mm। ठीक है, हाँ, तो ये इफेक्टिव डेंटिन थिकनेस है, इतना हमें चाहिए चाहिए पल्प के सराउंड में, अगर रिड्यूस होता है तो बेस्ड ऑन कितना रिडक्शन हो गया, कितना पास हो गए, उस बेस पे हम डिवाइड, हम यूज करते हैं कि हमें क्या यूज करना है, खाली बेस यूज करना है कि हमें लाइनर भी देना है, ठीक है, यस। ये चीजें हैं। एंड नाउ वी कम, ओके, विल गो थ्रू दिस, ओके, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, यू नो, इनामल, डेंटिन, सीमेंटम, ठीक है, डेंटल हार्ड टिश्यू यही होते हैं ना, इनामल है, डेंटिन है, सीमेंटम है, ठीक है, इसमें सबसे हार्डेस्ट कौन सा, इनामल, फॉलोड बाय द सीमेंटम, देन डेंटिन, है ना, इनामल में कितना होता है आपका, कंटेंट कितना होता है, 96% होता है, ठीक है, मिनरल कंटेंट, डेंटिन में कितना होता है, 70% के अराउंड होता है, सीमेंटम में कितना होता है, 50% के अराउंड रहता है, ठीक है। यस मैम।
ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं, देखो अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब हमें पता है कि मिनरल कंटेंट इतना ये है, तो यहाँ पर पीएच वैल्यू भी दो तीनों की अलग अलग होती है डेंटल केरीज होने के लिए। ठीक है, कि इनामल केरीज होगी ऊपर अक्लूजल, उसके लिए पीएच अलग लगेगा, डेंटिन केरीज होगी उसके लिए पीएच अलग रहता है, और सीमेंटम है उसके लिए पीएच अलग रहेगा। तो यहाँ अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं पीएच के ऊपर। ठीक है। पल्प प्रोटेक्शन हम किससे कर रहे हैं? एक तो हीट एंड मैकेनिकल ट्रॉमा, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एरोटर यूज करते हैं, वाटर कूलिंग, है ना, तो हीट जनरेट ना हो जब हम कटिंग करते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ टूथ स्ट्रक्चर, मतलब कंजर्वेटिव कैविटी डिजाइन, ठीक है, मेनली प्रिजर्व करने के लिए। और दूसरा एडेसिव टेक्निक्स आ गई हैं। तो मेन एडवांटेज है कॉम्पोजिट इन सब का या जीआईसी का, कि हमें सिर्फ केरियस पोर्शन ही रिमूव करना है ना। यस अब मिनिमल इन्वेसिव डेंटिस्ट्री आ गई, मतलब हमें कम से कम टूथ स्ट्रक्चर रिमूव करना है। उसमें भी हम क्या करते हैं? इन्फेक्टेड केरीज को हम रिमूव करते हैं, एंड अफेक्टेड केरीज होती है तो हम उसे रिमिनलाइजेशन के लिए छोड़ देते हैं, राइट। यस इन्फेक्टेड को हम रिमूव करते हैं, अफेक्टेड को हम छोड़ देते हैं कि वो रिमिनलाइज हो जाएगी। तो वहां वी शुड नो कि व्हाट इज अफेक्टेड केरीज एंड व्हाट इज इन्फेक्टेड केरीज। ठीक है, these principles are for the preservation of the tooth structure. नेक्स्ट इज डेंटिनल सेंसिटिविटी। तो डेंटिनल सेंसिटिविटी क्या होता है? हाइड्रोडायनेमिक थ्योरी हमने दी थी, है ना, कि डेंटिनल टिब्यूल्स होते हैं, उनके पास अपनी नर्व एंडिंग्स नहीं होती हैं। ठीक है, लेकिन आपकी पल्प से जो नर्व एंडिंग की जो होती है, नर्व एंडिंग्स वो डेंटिनल टिब्यूल्स में ओपन होती है, फ्लूइड रहता है। तो इट इज अ सेंसिटिव वन, तो हमें डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स हमें अप्लाई करने चाहिए। ठीक है, जब भी कैविटी हम कर रहे होते हैं। अब जो एमआईडी है, मिनिमल इन्वेसिव डेंटिस्ट्री, अब उसमें हम क्या यूज करते हैं? ओजोन थेरेपी हम यूज करते हैं, ओजोन अप्लाई करते हैं ना। तो कैविटी प्रिपेयर में अगर आप ओजोन अप्लाई करते हो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के यहाँ पर, तो इट हेल्प्स इन द डिसेंसिटिविटी, और इट इंक्रीज द बॉन्डिंग ऑफ द रिस्टोरेशन विद द टूथ। आपकी बॉन्डिंग भी इंक्रीज हो जाती है ओजोन थेरेपी से, एंड इट एक्ट्स एज ए बैक्टीरियासाइडल। ठीक है। ओडोंटोब्लास्ट एंड टर्शियरी डेंटिन। व्हाट इज ओडोंटोब्लास्ट एंड टर्शियरी डेंटिन? ओडोंटोब्लास्ट सेल कहाँ से आते हैं? पल्प से आते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? बेसिकली टर्शरी डेंटिन फॉर्म करते हैं, एंड टर्शरी डेंटिन कब बनती है? इन रिस्पॉन्स टू कैविटी प्रिपरेशन ट्रॉमा। ठीक है, किसी भी का ट्रॉमा हो रहा होता है, जैसे आपका ऑक्लूजल ट्रॉमा हो रहा है, या एज के साथ हम देखा टर्शरी डेंटिन बनती जाती है। ठीक है। यस प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी डेंटिन। प्राइमरी डेंटिन क्या होता है? which formed before the eruption. ठीक है। secondary dentin which formed after the eruption. ठीक है, before reaching the occlusal plane. and tertiary dentin, it forms after occlusal मतलब meeting, and it is in response to the injury. ठीक है। इंजरी आपकी कैसे भी इंजरी हो सकती है, मैकेनिकल इंजरी हो सकती है, केमिकल इंजरी हो सकती है ना, उसके रिस्पॉन्स में जो, दैट इज अ टर्शरी। ओके, नाउ विल अबाउट द केमिकल एस्पेक्ट, डेंटल हार्ट टिश्यू। ठीक है, वी नो दैट डेंटल हार्ट टिश्यू कंपोजिशन, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, इट इज मेड ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कोलेजन एंड प्रोटीन। अब यहाँ पर कोलेजन पर क्या आता है? यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 कोलेजन, है ना। तो रिमेंबर, टाइप 1 कोलेजन किस में होता है? बताओ बेटा, टाइप 1 कहाँ मिलता है हमारा? बोन में। एंड टाइप 2 किस में होता है? टाइप 2 इज इन द कार्टिलेज एंड इन डेंटिन। रिमेंबर, टाइप 2 किस में होता है? डेंटिन में रहता है। ठीक है। एंड यस टाइप 4 किस में था? जिंजाइवा में। ठीक है। अब आता है डीमिनरलाइजेशन रीमिनरलाइजेशन कॉन्सेप्ट, कि व्हाट हैपेंड कि अभी जैसे डेंटिस्ट्री की एडवांसमेंट हो रही है। ठीक है, तो डेंटिस्ट्री फील्ड इज शिफ्टिंग फ्रॉम सर्जरी टू मेडिसिन। ठीक है, पहले हमारा क्या रहता था कि कुछ भी, कोई भी चीज खराब हुई उसको काट के निकाल दो और हील होने के लिए छोड़ दो, है ना, यही रहता था ना। अब क्या है? अब क्या हम उसे अब इट इज गोइंग टूवर्ड्स अ मेडिसिन, कि हम उसको मतलब सर्जरी नहीं कर रहे हैं, वी आर हेल्पिंग इन द हीलिंग बाय प्रोवाइडिंग मेडिसिन। मेडिसिन जैसे कि रीमिनरलाइजिंग एजेंट वी आर गिविंग। यस ठीक है। अगर आप, इफ यू डिटेक्ट द केरीज इन अर्ली फेज, ठीक है, केरीज लिमिटेड टू द इनामल, ठीक है, तो हमारा जो रीमिनरलाइजिंग एजेंट आप देते हो पेशेंट को, कि आपने एक अच्छा टूथपेस्ट लिखा, ठीक है, एक माउथ वॉश दिया, तो इट विल रीमिनरलाइज इटसेल्फ। ठीक है, वापस से
टू स्ट्रक्चर बिल्ड हो जाता है। जस्ट मिनट, दीपक जस्ट मिनट, आई एम कमिंग, है ना, प्लीज। साबुन ले लो बेटा, अंदर से वाला साबुन अच्छा नहीं होता, इन्फेक्शन हो जाएगा। ये इसमें कुछ नहीं, ये खाता है पानी नहीं, ये लो तो अंदर दूसरा साबुन वो रखिए। ले ले कोई बात नहीं। ओके फाइन। So demineralization. तो fluoride action is very important. Fluoride agent. अब chemical interaction become like acid etching. ठीक है कि इनका इनका क्या असर पड़ता है, ठीक है, बॉन्डिंग मैकेनिज्म, पीएच इन्फ्लुएंस, ठीक है, एसिड एचिंग। एसिड एचिंग जो टेक्निक्स है बेसिकली, ठीक है, यहाँ पर तो एसिड एचिंग का मेन एडवांटेज क्या है, यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हो। इफ इट इज बिटवीन 0.5 mm डेंटिन भी अगर होता है तो आप डायरेक्ट एचिंग कर सकते हो, नो इश्यूज। बॉन्डिंग मैकेनिज्म जैसे कि आपका जीआईसी करते हो, दैट बॉन्ड डायरेक्टली विद द टूथ, आयोनिक बॉन्डिंग, ठीक है। आपका क्या अमलगम है, वहां पर क्या रहता है, वहां पर बेसिकली मैकेनिकल बॉन्डिंग होती है, ठीक है, गोल्ड फॉइल हो गया। पीएच इन्फ्लुएंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि पीएच कैसा है ना, क्या पेशेंट का, ठीक है। अब टेल मी, अगर सीवियर किस केस में कितना पीएच होगा, पेशेंट को सीवियर केरीज हो रखी होती है, द पेशेंट was severely मतलब prone to for dental case, what will be the pH for them? Ashish, remember 2.5. Am I audible? सुनाई दे रहे हैं कि नहीं? Hello, just a minute, I'll check. Okay, I have gone. Just a minute, I'm correcting. Hello? Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Audible. ओके, आई वाज आस्किंग कि जो सीवियर केरीज पेशेंट होते हैं उनमें पीएच कितना होता है? 2.5। 2.5. हाँ. Yes, ma'am. ठीक है, ये रिमेंबर, ये एमसीक्यूज आया हुआ है, ठीक है। और इनामल केरीज के लिए कितना होता है पीएच? 5.5, ठीक है। एंड डेंटिनल केरीज के लिए कितना होता है? 6.5, ठीक है। मतलब जो पेशेंट है जिनका एब्रेजन्स हो रखे हैं, ठीक है, डेंटिनल एक्सपोजर हो रखा है, तो वो आपका 6.5 पीएच में भी उनको केरीज प्रोग्रेस होगा, समझ रहे हो? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ना मटेरियल टिश्यू इंटरेक्शंस will come. Now we'll cover up the question. These are very important. What is the primary goal of cavity preparation? Cavity preparation क्यों करते हैं? To eliminate carious tissue. ठीक है, एक तो carious tissue तो we have to remove and shape the cavity for restoration. ठीक है, Yes, cavity ma'am. preparation. ठीक है, which principle emphasize the preservation of healthy tooth structure during cavity preparation. ठीक है, क्या होता है कि हमें ज्यादा स्ट्रक्चर प्रिवेंट करना है तो मिनिमल इंटरवेंशन। मिनिमल इंटरवेंशन मतलब कि आपको कम टूथ कटिंग करनी है, ठीक है, तभी तो आपका प्रिजर्व होगा हेल्दी टूथ स्ट्रक्चर। तो कम कटिंग किस में होती है? जीआईसी में हो गया, कॉम्पोजिट में हो गया, इसमें क्या होता है आपका मिनिमल इंटरवेंशन होता है, ठीक है। Yes. एंड अभी जो न्यू टेक्निक्स आ गए बेटा, है ना, जैसे एयर एब्रेजन हो गया, लेजर हो गया, उसमें तो सबसे कम होता है मिनिमल इंटरवेंशन, क्योंकि बार में भी हमारा एक से थोड़ा रिमूव ज्यादा होता है। लेकिन व्हेन वी यूज अ
एब्रेशन टेक्निक, ठीक है, सॉरी, एयर एब्रेशन टेक्निक है ना, या फिर हम लेजर टेक्निक यूज करते हैं, तो उसमें सिर्फ सिर्फ आपका केरीज पोर्शन ही रिमूव होता है, एंड जो मार्जिन होती है वो पूरी राउंडेड और अच्छी स्मूथ मार्जिन रहती हैं. एंड नाउ वी कम टू द इनिशियल स्टेप इन कैविटी प्रिपरेशन इन्वॉल्व्स, क्या होता है सबसे पहले, स्टैब्लिशिंग आउटलाइन फॉर्म. Outline form. Which of the following is biological consideration during cavity preparation? That is a pulp protection. है ना, बायोलॉजिकल कंसिडरेशन क्या है बेसिकली, बायोलॉजिकल मतलब हमारा पल्प टिश्यू इज अ बायोलॉजिकल लाइव टिश्यू, उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, पल्प प्रोटेक्शन. माय स्क्रीन इज विजिबल ना Yes, आशीष, ma'am. दिख रहा है ना, Yes, ma'am. ठीक. Yes, ma'am. Okay, now the question 5, the term outline form in cavity preparation refers to the shape of the cavity on the tooth On the surface, ठीक है, yes, ma'am. बेसिकली शेप, ठीक है. Resistance form in cavity preparation is designed to what, Remove prevent fracture of picture. tooth and restoration, ठीक है. रेजिस्टेंस मतलब बाहर आ जाएगा ना टूट के, तो हमें इसे प्रिवेंट करना होता है, फ्रैक्चर हो ना, प्रिवेंट फ्रैक्चर, दैट इज अ रेजिस्टेंस फीचर, ठीक है. रिटेंशन फॉर्म इज प्राइमरी कंसर्न विद द, Dislodging of restoration. यस, कि आपकी कैविटी डिसलॉज नहीं होगी, है ना, इंटरनल फोर्सेस लगते हैं उसमें. Convenience form in cavity preparation allows for the easier access and visibility during restoration placement. इतना भी जा मतलब आपको अच्छे से कैविटी दिखनी चाहिए, कन्वीनियंस फॉर्म, ठीक है, Yes, ma'am. Yes, दैट इज अ कन्वीनियंस फॉर्म. Okay, the removal of carious dentin is typically performed during which step of cavity preparation? ma'am. Caries removal, Here is ठीक removal. है. Yes, आप पहले आउटलाइन फॉर्म बनाते हो, ठीक है, सुन रहे हो, yes, उसके बाद yes, आप रिटेंशन फॉर्म आता है, रेजिस्टेंस फॉर्म आता है, कन्वीनियंस फॉर्म आता है, ठीक है. और उसके बाद भी अगर, हाँ पहन लो, उसके बाद भी कहीं कोई केरीज अगर आपको दिख रही होती है फ्लोर पे, तो फिर आप वहां से उतना केरीज आप रिमूव करते हो ना, yes, ma'am. अमलगम में भी. Yes, ma'am. विच मटेरियल इज कॉमनली यूज फॉर पल्प प्रोटेक्शन ड्यूरिंग कैविटी प्रिपरेशन? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Tension of the yes, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं ना. द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन फॉर प्रिवेंशन, ठीक है, इन्वॉल्व्स क्या होता है, एक्सटेंडिंग कैविटी मार्जिनल टू इंक्लूड ससेप्टेबल पिट एंड फिशर. हम एक्सटेंशन क्यों करते हैं कैविटी में, क्योंकि जो पिट एंड फिशर्स होते हैं वो बेसिकली वहां पर केरीज हो सकती है, उनको भी हम कवर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो yes, एरिया सेल्फ क्लेंजिंग एरियाज हो जाए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल कंसिडरेशन कैविटी प्रिपरेशन? Chemical consideration, that is the thermal conductivity of restorative material and adhesive property of bonding agent. Okay, chemical means आपकी bonding properties होती हैं, ठीक है, adhesion yes, properties. The smear layer formed during cavity preparation consists of, दैट इज अ सी ऑप्शन. स्मेयर लेयर क्या होता है बेटा, जो चीज हम निकालते हैं ना उसकी जो डेब्रिज रह जाती है, ठीक है, इट फॉर्म्स अ स्मेयर लेयर, ठीक है. जैसे आप कैविटी करें तो वहां पर इनामल और डेंटिन की डेब्रिज होगी, ठीक है, माइक्रोक्रिस्टलिन डेब्रिज फ्रॉम इनामल एंड डेंटिन, अभी बाकी रखो. और जैसे हम रूट केनाल ट्रीटमेंट करते हैं वहां पर भी स्मेयर लेयर फॉर्म होती है ना, क्योंकि हम अपने जो रोटरी आपकी फाइल्स होती हैं, जो भी फाइल्स आप यूज करते हैं मैकेनिकल या के फाइल, उसमें भी तो आपको डेब्रिस निकलता है डेंटिन का, ठीक है. yes, सम सेज की स्मेयर लेयर इज यूजफुल, सम सेज इट इज इट इज हार्मफुल, इट शुड बी रिमूव, ठीक है. तो दोनों कॉन्सेप्ट है एक्चुअली स्मेयर लेयर पे. इसमें एचिंग द इनामल सरफेस ड्यूरिंग कैविटी प्रिपरेशन प्राइमरी सर्व्स टू, हम एचिंग क्यों करते हैं, बेसिकली हम सरफेस surface रफनेस area बढ़ाना. बढ़ाते हैं ना, फॉर बेटर बॉन्डिंग. Yes, विच एसिड इज कॉमनली यूज फॉर एचिंग इनामल, कौन सा यूज करते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, है phosphoric ना, acid. फॉस्फोरिक, क्या कितना रहता है उसका परसेंटेज फॉस्फोरिक एसिड का, हाँ, कितना रहता है फॉस्फोरिक एसिड, कितना रहता है, कितना परसेंटेज रहता है फॉस्फोरिक एसिड का, 50%, 47%, कितना रहता है, हम्म, एक मिनट.
ओके, मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, ठीक है, इससे रिलेटेड। ठीक है, प्लीज रिमेंबर, phosphoric acid is commonly used for etching in dentistry, especially in adhesive procedures like bonding composite enamel. Concentration is basically between 30 to 47. ठीक है, मोस्ट कॉमनली वी यूज 37%। ठीक है, 37% फॉस्फोरिक एसिड जेल यूज करते हैं। ठीक है, इनामल पर्पस के इनामल एचिंग एंड डेंटिन एचिंग। ठीक है, इनामल एचिंग क्रिएट्स माइक्रोपोरोसिटी फॉर मैकेनिकल रिटेंशन, एंड डेंटिन एचिंग हम करते हैं रिमूव द स्मीयर लेयर ओपन डेंटिनल टिब्यूल्स। ठीक है, एचिंग टाइम कितना होता है इनामल में? 15 टू 20 सेकेंड्स, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस है। एंड डेंटिन में कितना होता है? 10 टू 15 सेकेंड्स। मैम एक प्लीज बार राइट फिर से डाउन, बता दीजिए। आई टेल यू। देखो, ये जो फॉस्फोरिक एसिड होता है ये कितने में रहता है? 30 to 40% रहता है। ठीक है, लेकिन जो मोस्टली हम जो क्लिनिक्स में यूज करते हैं दैट इज 37%। राइट डाउन। ठीक है, आपके नोट्स में ही लिख लो, 37% फॉस्फोरिक एसिड यूज होता है। यस। ठीक है, अब इनामल एचिंग होती है, डेंटिन एचिंग होती है। ठीक है, इनामल एचिंग में मैकेनिकल रिटेंशन के लिए हम माइक्रोपोरोसिटीज आते हैं, डेंटल एचिंग में स्मेयर लेयर रिमूव होती है। एचिंग टाइम इंपॉर्टेंट है, इनामल का कितना होता है? 15 to 20 सेकेंड्स। ठीक है, एंड डेंटिन का कितना होता है? 10 to 15 सेकेंड। हमें अवॉइड करना पड़ता है ओवर एचिंग। ठीक है, डेंटिन में, यस। इनामल में हो जाता तो चलता है, लेकिन डेंटिन में ओवर ओवर नहीं करना होता, 10 to 15 सेकेंड्स। यस। ठीक है, ये जेल्स में रहता है बेसिकली। ठीक है, पोस्ट एचिंग के बाद हमें थॉरली वाटर से रिंस करना पड़ता है, ड्राई करना पड़ता है, एयर ड्राई। ठीक है, और उसके बाद बॉन्डिंग एजेंट लगाकर हम फिलिंग कर देते हैं। ठीक है, कॉम्पोजिट से। फाइन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ अप्लाइंग बॉन्डिंग एजेंट इन कैविटी प्रिपरेशन इज टू। हम कैविटी प्रिपरेशन में बॉन्डिंग एजेंट क्यों लगाते हैं? बेसिकली seal the dentinal tubules and provide a surface for adhesion. ठीक है, यस। which restrictive material releases fluoride providing chemical benefit in cavity preparation? कौन सा करता है रिलाइज? जीआईसी करता जाता है ना, जीआईसी। ठीक है, द टर्म केवो सरफेस मार्जिन, केवो सरफेस मार्जिन क्या होता है बेटा? जंक्शन आपका जो बिटवीन द। रेस्पिरेशन है ना, और ऊपर का जो टूथ स्ट्रक्चर है। ठीक है, द यस। इट्स अ जंक्शन बिटवीन द cavity wall and the external tooth surface। ठीक है, केवो सरफेस मार्जिन। ठीक है, इसको बोलते हैं। ये कितना होता है अमलगम में? 90 डिग्री होता है। यस। ठीक है, अब केवो सरफेस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, कि इसमें 90 डिग्री होता है, अब उसमें कितना होता है? केवो सरफेस एंगल इन अमलगम एंड गोल्ड फॉइल में कितना होता है? 120। विल चेक। रुको बेटा। हाँ हाँ हाँ, देखो, यस, listen, it's a 30 to 40 degree, please, है ना, remember, केवो surface angle is the angle formed between the prepared cavity wall and the uncut tooth surface। ठीक है, amalgam, ideal केवो surface angle is 90 degree in amalgam। amalgam is brittle and need bulk for strength। ठीक है, amalgam कैसा होता है? बेसिकली ब्रिटल ब्रिटल। मटेरियल है। ठीक है, इट नीड बल्क फॉर स्ट्रेंथ, अ 90 डिग्री एंगल प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर एंड प्रॉपर एडेप्टेशन। नाउ गोल्ड फॉइल, डायरेक्ट गोल्ड फॉइल रेस्टोरेशन। ठीक है, अब आइडल, इसमें आइडल केबल सरफेस एंगल कितना? 30 to 40 डिग्री होता है। ठीक है, गोल्ड फॉइल में, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 30 to 40 डिग्री होता है गोल्ड फॉइल में। राइट डाउन, यहीं पर लिख लो। ठीक है, केबल, ये जो पूछा है केबल सरफेस एंगल के क्वेश्चन पे, अमलगम में 90 डिग्री, गोल्ड फॉइल में 30 to 40 डिग्री। रीजन, गोल्ड फॉइल इज मेलेबल एंड कैन बी बर्निश्ड इनटू थिन मार्जिन्स। ठीक है, अ बेवल इज क्रिएटेड टू एनहांस मार्जिनल एडेप्टेशन। ठीक है, वहां पर बेवल और कर दिया ताकि वो एकदम आराम से चिपक जाता है, मेलेबल होता है काफी, तो इट डजंट नीड कि बहुत ज्यादा बल्क हो। तो 30 to 40 डिग्री इसमें केवो सरफेस एंगल रहता है। यस। हम्म? यस।
In cavity preparation, finishing the enamel walls involves what? Smoothing and refining the cavity margins. ठीक है? Yes, ma'am. Okay, 20. The purple floor in a cavity preparation is कौन सी होती है? बेसिकली पर्पल फ्लोर किसको बोलते हैं? ठीक है, द वॉल एडजेसेंट टू द पल्प चैम्बर, द surface opposite the occlusion, the vertical wall, it's a wall adjacent to the pulp chamber. ठीक है, that is a pulpal floor. pulpal floor, ठीक है, pulp chamber के adjacent रहती है. और जो vertical wall रहती है that is a axial wall. ठीक है, Yes, क्लास 2 कैविटीज में. ओके, क्लास 2 कैविटीज जब हम बनाते हैं तो वहां पर आपका जो हम बकोलिंगुअल क्लियरेंस देते हैं वो कितना होता है? 0.5 mm. ठीक है, ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ डेंटल केरीज? क्या है बेसिकली प्राइमरी इटियोलॉजिकल फैक्टर? एजेंट. ठीक है, डाइट हो गया, डाइट इज नॉट. एजेंट क्या होता है? एजेंट इज बैक्टीरिया. ठीक है, यहाँ पर एजेंट yes, लिखा है ना, एजेंट इज बैक्टीरिया. होस्ट क्या होता है? टूथ सेल्फ. ठीक है, yes, तो और फ्लोराइड एंड टाइम, तो एजेंट यहाँ पर क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है. ठीक है, ओके. द एक्सियल वॉल इन ए कैविटी प्रिपरेशन इज पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ. ठीक है ना, ये आ yes, गया? कहीं पर भी कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी. ठीक है, yes, ओके. Which principle of cavity preparation focus on preventing future caries? Extension for prevention. ठीक है, the gingival floor in a cavity preparation refers to. gingival floor कौन सा होता है? axial floor के नीचे वाला होता है ना gingival floor. ठीक है, the area where the restoration contacts the ये sorry the wall nearest to the gingiva. ठीक है, gingival floor कॉन्टेक्ट एरिया जहां बनाते हैं ना बेसिकली वहां पर होता है नीचे आपके एक्सियल वॉल के नीचे, उसको जिंजावल फ्लोर बोलते हैं. ठीक है, एक्सियल वॉल के ऊपर क्या होता है? पल्पल फ्लोर होता है. लाइन एंगल्स, पॉइंट एंगल्स आपको पता ही है. ओके, अब एक और आई टेल डिस्कस अबाउट द कंपोजिट में मैं डिस्कस करूंगी. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द आउटलाइन फॉर्म इन कैविटी प्रिपरेशन? इट डिटरमाइंस द फाइनल मार्जिन्स ऑफ द रिस्टोरेशंस. ठीक है, नहीं क्या है? देखो right. सी ऑप्शन. सॉरी, इट एस्टैब्लिश द इनिशियल शेप एंड प्लेसमेंट ऑफ कैविटी वॉल्स. सॉरी, ठीक है, सी Yes, ऑप्शन. yes, ओके, विच इज द फॉलोइंग फैक्टर? ओके, विच इज द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस कैविटी प्रिपरेशन डिजाइन? लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ केरीज. ठीक है, ये तो है ए ऑप्शन. ठीक है, नाउ व्हाट इज द आइडियल डेप्थ ऑफ कैविटी प्रिपरेशन रिलेटेड इन रिलेशन टू डेंटिन थिकनेस? कितना होता है? 1/3 ऑफ डेंटिन थिकनेस. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. ये देखने में बहुत छोटा वो लग रहा है. ठीक है, ये काफी जब आते हैं ना क्वेश्चन तो यही क्वेश्चन हम लोग यूजुअली गलत कर देते हैं. yes, Which of the following is not a principle of cavity preparation? enamel itching. Okay, resistance, retention, extension, enamel etching. Okay, a properly designed cavity preparation should preserve as much tooth structure as possible. Why is beveling used in cavity preparation? beveling क्यों करते हैं? To remove unsupported enamel. ठीक है, to Yes, increase bonding surface area and also इसमें वो unsupported enamel का वो नहीं है तो to increase bonding surface area. ठीक है, beveling की जाती है ना बेसिकली जब हम composite भी हम कैविटी प्रिपेयर करते हैं composite के लिए, है ना, तो हम क्या करते हैं लास्ट में हम मार्जिन के यहाँ बेवल कर देते हैं. बेवल करते हैं ताकि आपकी ज्यादा ज्यादा बॉन्डिंग एरिया इंक्रीज. अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट होता है? सी फैक्टर आई डिस्कस विद यू. जो कंपोजिट इज अ मटेरियल, इसमें जितनी कम वॉल्स होंगी उतना कम श्रिंकेज होता है. ठीक है, जितनी ज्यादा वॉल्स होंगी उतना ज्यादा श्रिंकेज होगा. ठीक है, उतना ही ज्यादा सी फैक्टर काम करता है. ठीक है, कंपोजिट में. तो अगर हम देखते हैं कंपोजिट में, ठीक है, इंसाइजल एज
अगर आप इंसाइजल एज की वो बिल्ड करते हो कॉम्पोजिट, उसमें ज्यादा रिटेंशन फीचर होगा एज कंपेयर टू आप जो वो बिल्ड करते हो ना, कैविटी बनाते हो, वहां पर श्रिंकेज ज्यादा होता है, मतलब मार्जिन ज्यादा ओपन हो जाती है उसमें, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, एक तो लाइट सोर्स की तरफ कॉम्पोजिट क्या होता है, श्रिंक करता है ना। तो अगर आपका, क्योंकि उसमें वॉल्स कम है तो श्रिंकेज भी कम होती है। ओके, डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट वर्क्स बाय, डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट क्या करता है, बेसिकली रिमूव द स्मेयर लेयर कंप्लीटली No, ma'am. and Penetrating the dental penetrating the tubule. dentinal tubules and forming a hybrid layer. Hybrid layer. Okay, penetrating the dentinal tubules and forming a hybrid layer. Okay, dentin bonding agent, B option. The main function of a cavity liner is to protect the pulp. क्या है, Thermal to provide insulation. thermal insulation, protect the pulp, ठीक है, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड एज ए कैविटी लाइनर, किसको यूज करते हैं हम कैविटी लाइनर, अगर यहाँ पर जो ऑप्शन देखा जाए तो उसमें क्या आएगा, ग्लास आइनोमर सीमेंट, ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू रिटेंशन फॉर्म, grooves एंड अंडरकट कंट्रीब्यूट, एचिंग एंड बॉन्डिंग, बेवलिंग, रेजिस्टेंस टू ऑक्लूसिव फोर्सेस, ठीक है। बैबलिंग भी आपका रिटेंशन, एचिंग एंड बॉन्डिंग भी रिटेंशन फीचर में आते हैं। विच डेंटल मटेरियल इज मोस्ट बायोकम्पैटिबल विद द टूथ, अमलगम, कॉम्पोजिट रेजिन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड, इथेनॉल, कौन सा है सबसे ज्यादा Calcium बायोकम्पैटिबल? hydroxide. यस। विच केमिकल प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट फॉर एडिशन इन डेंटल बॉन्डिंग एजेंट, ठीक है, कौन सी, एडिशन मतलब क्या होता है, एडिशन एंड कोहेजन मतलब बताओ। अ, अगर सेम मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बॉन्ड करेंगे तो मैम वो कोहेजन होता है, ठीक है। कोहेजन। एडिशन यस। होता है दो अलग अलग मटेरियल्स, ठीक है, जब बॉन्ड करते हैं, ठीक है, दैट इज अ डिसिमिलर वन, इज एडिशन, ठीक है। कि आपने यस। पेपर लिया दीवार पर चिपकाया, ठीक है, यस। दीवार इज अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, पेपर इज डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एडिशन, ठीक है। कोहेजन क्या होता है, जैसे कि हम गोल्ड फॉइल्स लगाते हैं, एक के ऊपर एक गोल्ड फॉइल लगाते जाते हैं, तो दे हैव अ कोहेसिव प्रॉपर्टी, तो गोल्ड फॉइल आपस में एक दूसरे चिपक रही है, तो वो क्या है, कोहेजन। गॉट इट। अगर यस। हम जैसे पेपर्स हैं, पेपर गीले हो गए, ठीक है आपके पास, तो एक एक पेपर से दूसरा पेपर, दूसरे से तीसरा पेपर चिपकना, सेम, तो दैट इज अ कोहेजन। कोहेजन, ठीक है। विच केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट फॉर एडिशन इन डेंटल बॉन्डिंग एजेंट, तो डेंटल बॉन्डिंग एजेंट जो अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो टूथ सरफेस में अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट हो जाती है, हाइड्रोफिलिसिटी, ठीक है, यस। कि मॉइस्चर कंटेंट में वो होना चाहिए उसको, ठीक है, फोबिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेंटिनल टिब्यूल पर हम अप्लाई करेंगे। यस। ग्लास ionomer cement adheres to two structure due to chemical bonding with calcium in hydroxyapatite, ठीक है, बी ऑप्शन। ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैविटी वार्निश, कैविटी वार्निश क्यों लगाते हैं, डेंटिनल टिब्यूल्स को सील करने के लिए लगाते हैं, ठीक है, एंड रिड्यूस माइक्रो लीकेज, ठीक है, रिड्यूस माइक्रो लीकेज, तो हम कैविटी वार्निश किस किस में यूज करते हैं, अमलगम में यूज करते हैं कैविटी वार्निश, ठीक है, और किस में यूज करते हैं, बाकी में नहीं यूज करते, ठीक है। आप कंपोजिट के नीचे यूज करोगे, नहीं यूज करोगे, आपकी बॉन्डिंग इंटरप्ट हो जाएगी, ठीक है। यस। जीआईसी में यूज करोगे, नहीं यूज करोगे, ठीक है। ये कि जो कैविट जो वार्निश आती है, फ्लोराइड वार्निश आती है, कंपोजिट के अलग आते हैं, कंपोजिट रेस्टोरेशन करने के बाद ऊपर से फ्लोराइड वार्निश लगा देते हैं, ठीक है, ताकि ऊपर की जो हमारा जो केबो सरफेस है वो सब हमारा इंटैक्ट हो जाए। अंदर नहीं लगाते, कैविटी के अंदर नहीं लगाते, कैविटी के अंदर किस में लगा सकते हैं, सिर्फ अमलगम में लगा अमलगम। सकते हैं, ठीक यस। है। ओके, कैविटी प्रिपरेशन फॉर कंपोजिट रेजन रेस्टोरेशन डिफर्स फ्रॉम अमलगम, ठीक है, बिकॉज कैविटी क्यों होता है, कंपोजिट को इट रिलाइज ऑन बॉन्डिंग फॉर रिटेंशन, ठीक है, कंपोजिट को बॉन्डिंग होती है रिटेंशन के लिए, ठीक है, और अमलगम को क्या चाहिए, तो मैकेनिकल रिटेंशन चाहिए होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर इन पल्प इरिटेशन ड्यूरिंग कैविटी प्रिपरेशन, हीट जनरेशन, डेप्थ ऑफ कैविटी प्रिपरेशन, एज ऑफ द पेशेंट, केमिकल, दैट इज द एज ऑफ द पेशेंट, है ना। Okay. The smear layer on dentin enhances bonding
नीड टू बी कंप्लीटली रिमूव फॉर बॉन्डिंग, तो बी ऑप्शन है करेक्ट। yes, ठीक है, सेल्फ एचिंग प्राइमर्स आर एडवांटेजियस। ठीक है, सेल्फ एचिंग प्राइमर्स एडवांटेजियस बिकॉज दे सिंप्लीफाई द बॉन्डिंग प्रोसीजर बाय कंबाइनिंग एसिड एंड प्राइमिंग। तो उसमें आपको अलग से बॉन्डिंग एजेंट नहीं लगाना पड़ता सेल्फ एचिंग प्राइमर्स में, उसमें ऑलरेडी एचेंट रहता है। ठीक है, तो आप बस वो अप्लाई करते हो और सीधा कॉम्पोजिट कर देते हो। चीजें कंप्लीट लेकिन करते आई हैव यूज मतलब बहुत ज्यादा उतना इफेक्टिव नहीं रहता उनका रिटेंशन, मतलब जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो आई आई लाइक टू मतलब यूज सेपरेटली, एचेंट अलग, हैं। बॉन्डिंग एजेंट अलग, है ना। जो yes, आते तो है सेल्फ एचिंग प्राइमर्स, लेकिन मैंने देखा उनका रिटेंशन बहुत अच्छा नहीं होता है। yes, विच टाइप ऑफ कैविटी प्रिपरेशन प्रिजर्व द मोस्ट टूथ स्ट्रक्चर, तो किसमें सबसे ज्यादा रिटर्न वो रहेगा, पीआरआर। ठीक है ना, प्रिवेंटिव yes, रेजन रेस्पिरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ टोटल एच एडेसिव सिस्टम्स। टोटल एच एडेसिव सिस्टम का क्या वो रहता है, सेंसिटिविटी, पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी। अब इसको मैं कैसे रिजॉल्व करती हूँ, आई टेल यू। एक्चुअली व्हेन आई डू एचिंग, ठीक है, एचिंग करने के बाद आई प्रेफर टू यूज व्हाट, ओजोन, ओजोन एप्लीकेशन। ठीक है, आप ओजोन अप्लाई कर दो, ओजोन से ना आपका सेंसिटिव इशू कम हो जाता है। ओजोन आप जब भी कहीं पर किसी भी कैविटी में, क्योंकि ओजोन बॉन्डिंग को इंटरफेयर नहीं करता है। ठीक है, ओजोन ऑयल्स आते हैं आजकल सिरिंज में आते हैं, इट्स ऑलिव ऑयल में ओजोन गैस मिक्स रहती है। तो आप जब कैविटी पर लगाते हो, जैसे आप कंपोजिट करने जा रहे हो, तो आपका सेंसिटिव इशू नहीं रहेगा। ठीक है, और इवन आप जीआईसी में भी यूज करते हो लगाने से पहले, तो आपकी जो बॉन्डिंग है वो बढ़ जाती है। मैम कॉम्पो ये अपने क्राउन कटिंग के बाद में जो सेंसिटिविटी बढ़ती है उसमें भी अगर ये ओजोन ऑफ कोर्स का लगा जो सकते हो, हाँ लगा सकते हो ओजोन। ये बहुत ही अच्छा डिसेंसिटाइजिंग एजेंट है। इवन आफ्टर स्केलिंग, जो एज पेशेंट है जहाँ पर रूट्स ओपन हो जा रखी है, पॉकेट्स हैं, वहां पर भी आप दोगे तो पेशेंट को बहुत आराम पड़ता है। ओजोन का, ओजोन ऑयल फॉर्म में आता है, ऑलिव ऑयल में मिक्स रहते हैं, ओजोन सिरिंजेस में मिलता है। तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, इट इज वेरी इफेक्टिव। तो आई मतलब मैं काफी सारी सिरिंजेस रखती हूँ हमेशा खरीद के। तो स्केलिंग के बाद भी यूज करते हैं हम लोग, कैविटी प्रिपरेशन में भी यूज करते हैं। हीलिंग, कोई कहीं कोई लीजन है उस पर भी आप लगाओ तो तुरंत हील करता है। ठीक है, मैं अप्लाई कैसे करते हैं इसको? इट्स अ लिक्विड, इट्स अ ऑयल फॉर्म। तो आप कॉटन से या किसी भी उससे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और उसको क्योर कर दो, मतलब आपने जैसे आप सिरिंज फॉर्म में आता है, निडल से आप उस जगह पर आप गिरा दो, ड्रॉप गिरा दो, वो अपना फ्लो हो जाता है। यस मैम। ठीक है, उसके बाद आप क्योर कर दो। Why is incremental layering recommended composite restoration, क्यों हम incremental layering करते हैं, to reduce polymerization shrinkage। ठीक है, अगर हमने एक साइड पूरी कैविटी से अमल भर के और फिर करेंगे तो क्या सब जगह से वो श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कंपोजिट श्रिंक्स टुवर्ड द लाइट सोर्स। तो हम जैसे कंपोजिट का हमने एक लेयर लगाया, वर्टिकल लेयर्स में लगाते हैं ना, तो जिस साइड लगाया उसके ऑपोजिट साइड से हम उसको क्योर करते हैं ना, तो सरफेस से पहले, फिर उसके बाद ऑक्लूजर पे लेकर आते हैं ताकि श्रिंकेज कम हो। ओके, ओवर ड्राइंग डेंटिन आफ्टर एचिंग कैन लीड टू, क्या होगा ओवर ड्राइंग कर दिया जाए डेंटिन को आफ्टर एचिंग, कैन लीड टू रिड्यूस बॉन्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू कोलाजन कोलैप्स। ठीक है, कोलाजन कोलैप्स हो जाएंगे, रिड्यूस बॉन्ड स्ट्रेंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्टिव मटेरियल प्रोवाइड द बेस्ट सीलेबिलिटी एबिलिटी टू डेंटिन, किस में रहती है सीलिंग एबिलिटी, कॉम्पोजिट रेजिन, अमलगम, ग्लास एनोवा, गोल्ड इनलेस, किस में रहेगी, जीआईसी। जीआईसी, गुड। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ माइक्रो लीकेज इन डेंटल रेस्टोरेशन, poor sealed margins basically, है ना। वो क्या नहीं, what is the main cause of micro leakage in dental restorations, सील नहीं होगा मार्जिन प्रॉपर। है ना। okay, okay, which cavity classification used for caries on the proximal surface of anterior teeth, anterior surface के अगर proximal surface क्या होगा, वो क्लास कौन सी क्लास होगी बताओ, मैम क्लास प्रॉक्टिक थ्री। प्रॉक्सिमल केस। ठीक है, अगर posterior टीथ के proximal surface में होता तो क्लास टू, occlusal pit and fissures होते क्लास वन। ठीक है, यस जीवी ब्लैक का क्लासिफिकेशन है ना बेटा, यस।
है ना. क्लास 4 इज इंक्लूडिंग द इंसाइजल एजेस, है ना, इंसाइड प्रॉक्सिमल जी. सरफेस, है ना, ऑफ एंटीरियर टीथ इंक्लूडिंग द इंसाइजल. क्लास 4. ठीक है. विच कैविटी प्रिपरेशन टेक्निक इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ एयर एब्रेशन और लेजर इंस्टेड ऑफ रोटरी हेलो इंस्ट्रूमेंट? क्या बोलते हैं? काइनेटिक कैविटी प्रिपरेशन. क्या बोलते हैं बेटा? हेलो. अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या बोला, मिनिमम इंटरवेंशन डेंटिस्ट्री. ठीक है. एमआईडी. एमआईडी में हम क्या कर रहे हैं आजकल, हम ड्रिल नहीं यूज करते, बर्स नहीं यूज करते, एयर एब्रेशन या लेजर यूज करते हैं, रोटरी इंस्ट्रूमेंट नहीं करते. तो इसको क्या बोलते हैं? एमआईडी, मिनिमम इंटरवेंशन डेंटिस्ट्री. ठीक है. वही मैंने बताया कि वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम सर्जरी टू मेडिकल फील्ड, मेडिसिन फील्ड. ठीक है. बी ऑप्शन. ओके. और जो कैविटी प्रिपरेशन बनाते हैं एयर एब्रेशन टेक्निक्स के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक कैविटी प्रिपरेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? काइनेटिक कैविटी प्रिपरेशन. ठीक है. क्योंकि बहुत तेज स्पीड में एयर एब्रेशंस निकलते हैं, एल्यूमिनियम पार्टिकल, जो कि केरियस पोर्शन को रिमूव कर देते हैं पूरा, और कोई साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होती. जैसे एरोट्री यूज करते हैं ना, एरोट्री यूज करते हैं तो क्या होता है, बहुत ही गंदी वो साउंड आती है ना, आवाज होता है, शोर होता है. जबकि एयर एब्रेशन टेक्निक में शोर नहीं होता. एयर एब्रेशन टेक्निक से ना जो स्टेन्स वाले पेशेंट होते हैं ना, जैसे जो गुटखा खाते हैं, उनके भी टीथ बहुत अच्छे क्लीन हो जाते हैं विदाउट आपको वो स्क्रैच किए हुए. हम लोग लगे होते हैं स्केलर से स्क्रैचिंग करने में पूरे, उनको धीरे 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 गुटखा के स्टेन्स रिमूव करने में. तो दो स्टेन्स ऑल्सो गेट वेरी इजीली क्लीन विद द एयर एब्रेशन. हेलो. हेलो ओके. सो यू मैम गॉट इट. बायोलॉजिकल एंड केमिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कैविटी प्रिपरेशन समझ आया कि नहीं आया? यस मैम. हाँ, आया. आ गया ना. आ गया मैम. कि यस. बायोलॉजिकल क्या है, केमिकल क्या है. केमिकल बेसिकली बॉन्डिंग टू बॉन्डिंग. रेस्ट्रिक्टिव मटेरियल की कैविटी के साथ. ठीक है. एंड बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो हम बात कर रहे हैं, तो आपकी कैविटी, जो कैविटी फॉर्म जो बनाते हैं ना, उसके एक तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, और दूसरा पल्प प्रोटेक्शन पता होना चाहिए बेसिकली. ठीक है. यस. यस. Now we move to the second chapter, dental caries. It is a very important chapter. ठीक है. इसमें बेसिकली रिसेंट इमेजिंग टेक्निक्स पे क्वेश्चंस आते हैं हर साल. ठीक है. ओके. ओके. हेलो जो टेक्निक, हाउ डू डायग्नोज द डेंटल केरीज, कैसे डायग्नोज करते हैं? हेलो. हेलो हेलो. यू आर हेलो ऑडिबल टू मी. हेलो. हाँ दीपक बोलो. मैम आपने कभी क्वेश्चन बताया था जिसमें आपने बताया था इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल लेयरिंग टेक्निक कंपोजिट में यूज होता है. हाँ बोलो. उसका रीजन समझ नहीं आया, एक बार प्लीज डिस्कस करेंगे. Deepak, your voice is not clear. Can you write in the chat box? I'll go through it. Chat box में आपने लिखा कुछ? Okay. Please write your message in chat box. इंक्रीमेंटल लेयरिंग टेक्निक कंपोजिट में हम यूज करते हैं, बर्ड टेक्निक नहीं यूज करते. जैसे कि आपका जो कैविटी फ्लोर है, ठीक है, हम क्या करते हैं, बाकी मटेरियल से कंपो आपका अमलगम हो गया, जीआईसी हो गया, मटेरियल मिक्स करते हैं. ठीक है. मिक्स करें, हम अगेंस्ट द पल्पल फ्लोर हम प्रेस करते जाते हैं. ठीक है. कॉम्पैक्ट करते जाते हैं हॉरिजॉन्टल लेयरिंग में. हेलो. हेलो यस मैम यस मैम. आर यू राइटिंग योर मैसेज? नो मैम नो मैम. हाँ. बट इन composite, in we use a incremental layer technique, मतलब against the wall, against the walls, vertical this thing. ठीक है. ओके Got it. So shall we move toward the next topic? यस मैम. Okay, fine. मैम डेंटल केयर में कौन सा टॉपिक आपने बताया जो इम्पोर्टेंट है? देखो, एक तो डेंटल केरीज में आपको एक तो ये जो आपका इसमें, ये अभी जो चैप्टर अभी हम जो कवर करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है. ठीक है. इसमें से क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. और
ये जो पहले अभी हमने कवर किया बायोलॉजिकल एंड केमिकल कॉन्सेप्ट, इसमें से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन वो पूछ लेता है, लेकिन अभी मैंने देखा जो ट्रेंड है बेसिकली उसका, वो इसमें से रिसेंट इमेजिंग टेक्निक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। Yes. तो विल सेलेक्ट, और ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है कंजर्वेटिव में, बायोलॉजिकल एंड केमिकल कॉन्सेप्ट और डेंटल केरीज। इसमें रिसेंट डायग्नोस्टिक टूल्स इंपॉर्टेंट है बेसिकली, ठीक है, Yes. कंजर्वेटिव। बाकी इतना कुछ नहीं है। हु इज द फादर ऑफ डेंटिस्ट्री? Who is the father of dentistry? Pierre Fauchard, ठीक है। प्लीज गो थ्रू द नोट्स, ठीक है, एंड ट्राई टू अटेंड द लाइव क्लास, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कुछ डिस्टर्बेंस हुई, ढंग से सुन नहीं पाई, तो वीडियो कोर्सेज में जा सकते हो, आई हैव डन फ्री, ठीक है, क्लासेस को तो आप दोबारा सुन सकते हो। उसमें ना आवाज इंटरप्ट नहीं होती है बिल्कुल भी, जो रिकॉर्डिंग क्लासेस है, ठीक है। Yes. उसमें आवाज एकदम बहुत अच्छी क्लियर आवाज है, काफी लाउड साउंड है, Yes. ठीक है। बट ट्राई टू अटेंड लाइव क्लासेस, है ना। लाइव क्लासेस में क्या है कि यू कैन क्लियर योर डाउट्स। एक बार जो टाइम चला गया, हम ना, हमें लगता है हम दोबारा से दे देंगे मॉर्निंग में, लेकिन वो हो नहीं पाता है। Yes. ओके, सो आई एम शेयरिंग। ओके, डेंटल केरीज। सो विल यू टेल मी हाउ डू डायग्नोज द डेंटल केरीज? क्या क्या आपको पता है डेंटल केरीज को कैसे हम डायग्नोज करते हैं? जब पेशेंट आते हैं क्लिनिकली आते तो आप कैसे पता बोलते हो कि इस पर ये डेंटल कीरीज हो रखी है? हाउ डू यू से? एक तो मैम थ्रू एक्सरे ओके, उससे पहले एक्सरे तो नहीं लोगे ना हर पेशेंट के एक्सरे, विजिबल। है ना। दैट इज एज लो एज, है ना, अलारा प्रिंसिपल हम हर पेशेंट का नहीं ले सकते एक्सरे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ठीक है। यस उसका विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं। अब क्लिनिकल एग्जामिनेशन कैसा होता है कि आप जो ग्रॉस केरीज है वो आपको ऐसे दिख जाती हैं, यस ठीक है, बड़ी केरीज होती हैं। लेकिन जो इंसिपिएंट केरीज होती हैं वो कैसे दिखती हैं? हमें उनको एयर ड्राई करना पड़ता है, एयर ड्राई, है ना। इंसिपिएंट केरीज मतलब कि वहां पर से मिनरल लॉस्ट है, ठीक है, कि आप जब एयर ड्राई करोगे तो तब वो व्हाइट स्पॉट लीजन्स आपको दिखेंगे, ठीक है। अब नाउ क्वेश्चन इज दे, आपने इनामल हाइपोप्लेजिया देखा है, ठीक है, उसमें व्हाइट स्पॉट होते हैं, ठीक है। और जो यस इंसिपिएंट केरीज होती है, जब मिनरल लॉस वहां पर व्हाइट स्पॉट होते हैं। तो हाउ विल यू से कि डेंटल केरीज का व्हाइट स्पॉट है कि इनामल हाइपोप्लेजिया का व्हाइट स्पॉट है? कैसे पता करोगे कि डेंटल केरीज के कारण व्हाइट स्पॉट हुआ है कि ये इसका इनामल हाइपोप्लेजिया है? रिमेंबर, मैम ठीक है। वो हाँ बोलो आप। मल्टीपल जगह, मैम मल्टीपल जगह पे नहीं होगी ना, इंसिपिएंट केस तो कहीं कहीं पे होगी, लेकिन जो दूसरे ऐसा कुछ क्या नहीं, बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं। अगर इनामल हाइपोप्लेजिया किसी पर्टिकुलर टूथ में हुआ, ठीक है, सिस्टमिक डिजीज के कारण या कुछ लो, तो वो एक दांत में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सब दांतों में हो। हो सकता है हाँ खाली मोलर पर हो, फर्स्ट मोलर पर ही हो एक साइड, या हो सकता है इंसाइजर्स पर ही हो, या हो सकता है कि ऑल द, मतलब ऑल 6 to 6 पर हो। यस ओके लिसन, देखो जो इनामल हाइपोप्लेजिया है ना वो आपको ऐसे नेकेड आई से दिख जाता है, ठीक है। यस और दूसरा कि लोकेशन इज इम्पोर्टेंट। जो यूजुअली इनामल हाइपोप्लेजिया के जो मार्केशंस रहते हैं, यूजुअली दे आर लोकेटेड ऑन द मिडल थर्ड ऑफ द टूथ और ऑन द इंसाइजल एजेस, ठीक है। डेंटल किरीज कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? सर्वाइकल एरियाज में रहते हैं, क्यों? प्लाक एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है, सर्वाइकल एरियाज में, ठीक यस है, जहाँ पर हाइजीन परफॉर्म नहीं हो पा रही उस उन एरियाज में रहते हैं। प्लस जो डेंटल कीरीज होता है, जब सलाइवा है मुंह में, वाटर है, तो इट्स नॉट विजिबल। जब एयर ड्राई करते हो ना अच्छे से, तब वो विजिबल होता है। तो एयर ड्राइंग इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जब पेशेंट को अपने एयर मारा ना, अच्छे से फ्लश किया, सलाइवा हटा वहां से, तब वो आपको दिखेगा डेंटल केरीज, है ना, इंसिपेंट केरीज, ठीक है। जबकि जो इनामल हाइपोप्लेजिया वो ऐसे ही दिखता है बात करते करते पूरे सामने, ठीक है। और ये सर्वाइकल एरियाज में होता है डेंटल केरीज, यस है ना, यस इंसाइजर्स के। अब इंसाइजर्स में जैसे अपर इंसाइजर को डेंटल केरीज कहाँ होगा? बच्चे को जब दूध पीता है बच्चा, तो दूध इकट्ठा हो जाता है मसूड़े पर और दांत के सर्वाइकल एरिया में,
तो वहां पर कैविटी प्रिपरेशन पहले होती है ना, व्हाइट स्पॉट आते हैं, फिर वो कैविटेड होते हैं। ओके Yes. फाइन, दिस इज आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन। फिर उसके आप विजुअल आपने उसको विजुअली दिखा, ठीक है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, विजुअल आप चेक करते हो। फिर दूसरा आप टेक्टाइल सेंसेशन से चेक करते हो, ठीक है। टेक्टाइल में आप कौन सा यूज करते हैं, प्रोब यूज करते हैं, ठीक है। हमें शार्प प्रोब नहीं यूज करना चाहिए, वी शुड यूज ए CPI-10 प्रोब, है ना, जो कि पता चले कि आपने फोर्स किया और वो एरिया टूट गया, मतलब पहले कैविटी नहीं थी और आप कैविटी हो गई, है ना। तो वो नहीं, वी शुड यूज ए बॉल, जिसमें बॉल लगा होता है हल्का सा, CPI-10, वो हम यूज करते हैं, ठीक है, डेंटल केरीज के लिए, डायग्नोस के लिए, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई लेजर, अगर कोई लगता है कि, है ना, कि कहीं पर ऐसा है कि प्रॉक्सिमल केरीज है जो डिमार्क नहीं हो रही है, तो फिर आप एक्सरे लेकर चेक करते हो, राइट। पेरियोपेकल एक्सरेज, है ना, तो डेंटल केरीज के लिए, ठीक है। अब रिसेंट रिसेंट डायग्नोस्टिक टूल्स, मतलब कि हम उस वक्त की बात कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे पेशेंट को केरीज ना हो, ठीक है, पहले ही हम डिटेक्ट कर लें, ठीक है। आपका अभी तो जैसे आपने रेडियोग्राफ से डिटेक्ट करते हो, ठीक है, आपका आरवीजी हो गया, अब सबसे ज्यादा तो आरवीजी यूज हो रहा है ना। आरवीजी में एक तो डोज कम लगती है, रेडिएशन डोज, टाइम भी कम लगता है, तुरंत आपको आपको जो फिल्म है आपकी तुरंत आपकी स्क्रीन पर आ जाती है, Yes. ठीक है, और रिकॉर्डेड रहती है कि आप कभी भी इसको वापस से चेक कर सकते हो, है ना। अब जो रिसेंट जो चीजें हैं कि रिसेंट एडवांसमेंट है, वो बेसिकली किस चीज के लिए, इट इज कॉस्टली आल्सो एंड इट हेल्प्स इन द डिटेक्शन ऑफ डेंटल केरीज एट वेरी वेरी अर्ली एज, मतलब बहुत जल्दी डिटेक्ट करने के लिए होता है, मतलब आपको उसका कैविटी नहीं हुई होती है, मिनरल लॉस भी नहीं, उससे पहले ही डिटेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है, कि सब सरफेस जो लॉस हो रहा होता है इंसिपिएंट, उसको डिटेक्ट करता है। जैसे कौन कौन से डिवाइसेस है बताओ, डायग्नोडेंट पढ़ा है कि नहीं, डायग्नोडेंट पेन आजकल आते हैं, लेजर, वो लेजर लाइट छोड़ते हैं ना, तो उस पर रीडिंग आती है, जैसे हमारा अपेक्स लोग के होते हैं, रीडिंग डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो रीडिंग अगर हाई होती है, ठीक है, तो वो बताता है अगर ये रीडिंग हाई जाए तो डेंटल केरीज हो रही है अंदर, ठीक है। फिर लेजर फ्लोरेसेंस आ गई है आजकल, लेजर फ्लोरेसेंस की जो केरियस पोर्शन है वो अलग से ही दिखेगा आपको, ग्रीन कलर का इमेज होकर, ठीक है। लेजर फ्लोरेसेंस फ्लोरेसेंस आप यूज करते हो, ट्रांस इल्यूमिनेशन यूज करते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गए, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मतलब इस पर बहुत सारे हैं डेंटल केरीज उस पर, ठीक है। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया था डेट इज है, उस पर पूछा गया कि डायग्नोडेंट पर पूछा गया था, ठीक है। तो उसमें क्या लेजर फ्लोरेसेंस यूज होता है, लाइट फ्लोरेसेंस यूज हुआ है कि लेजर फ्लोरेसेंस, सो यू हैव टू राइट लेजर फ्लोरेसेंस, ठीक है। ओके, सो जस्ट अ मिनट, I'll go. So we are covering on the, okay, this chapter is basically uh, okay, we'll go through, just we'll go through dental caries. We, you all know what is dental caries, okay. Okay, and there are different theories also for the etiology of dental caries, कि आपका exogenous theory, endogenous theory है, ठीक है, अलग अलग different theories हैं, ठीक है। फिर रिसर्च research method in the study of dental caries, cross section study, cohort study, case control studies, ठीक है। लॉन्जिट्यूड माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि आपका इनामल केरीज किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, पिटन फिशर केरीज, Mutants. एंड डेंटिनल केरीज में कौन सा बैक्टीरिया रहता है ज्यादातर, लैक्टोबेसिलस, ठीक है। एंड रूट केरीज में कौन सा रहता है, एक्टिनोमाइसिटा विस्कोसस, ठीक है। मैम लैक्टोबैसिलस का एक बार फिर से बताइए प्लीज। ये आपका जो इनामल केरीज होता है बेटा, पिट एंड फिशर केरीज, वो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस रहता है, ठीक है। और यस। जब डीप डेंटाइनल केरीज होती है ना, स्टार्टिंग में तो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस होता है, लेकिन जैसे जैसे अंदर जाते जाते हैं डेंटिन में अंदर, तो वहां पर कौन सा ऑर्गेनिज्म मिलता है, लैक्टोबैसिलस मिलता है बेटा, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। यस। ठीक है। और जो रूट केरीज होती है वहां पर कौन सा मिलता है, एक्टिनोमाइसिटम विस्कोसस, यस। ठीक है।
ये हो गया। एंड आजकल क्या है कि ना केरी रिस्क असेसमेंट हो गया है। जैसे हमारा कंट्री तो इतना नहीं है, जो बाहर के कंट्रीज है वहां पर वो लोग पेशेंट के ना केरी रिस्क असेसमेंट करते हैं। मतलब प्रॉपर जैसे केरियोग्राम हो गया, केरियोग्राम भी एक सॉफ्टवेयर की तरह रिकॉर्ड करता है ना पूरा, कि पेशेंट की डाइट क्या है, पीएच कितना है उसके मुंह में, सलाइवा का वॉल्यूम कितना है, काफी चीजें ना, सलाइवा टेस्ट, ये सारी चीजें करता है ना। केरियोग्राम हो गया, फिर कैमरा डिवाइस आ गया, केरीज असेसमेंट टूल आ गया, जिससे कि वो डिटेक्ट करते हैं कि ये पेशेंट क्या रिस्क है इसमें, कि माइल्ड रिस्क है कि मॉडरेट रिस्क पेशेंट है कि सीवियर रिस्क पेशेंट है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट आर देयर फॉर रिस्क असेसमेंट। ओके, इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक टूल्स टेक्निक्स, डिजिटल रेडियोग्राफी पता ही है आपको, ही ना। तो रिसेंट उसमें जो आते हैं वो आपका फ्लोरेसेंस मेथड होते हैं, ठीक है। डायग्नोडेंट है, लेजर फ्लोरेसेंस है, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी है, सब्ट्रैक्शन रेडियोग्राफी है। तो ये सब क्वालिटेटिव एनालिसिस का इससे मतलब अराउंड 15-20 कोई टेक्निक्स आर देयर, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, ठीक है। केरीज ये अर्ली के लिए केरीज डिटेक्शन के लिए होते हैं। प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी क्या होता है? वाटर फ्लोरिडेशन, वाटर वार्निश एंड फ्लोराइड टूथपेस्ट एंड माउथ वॉशेस, ठीक है। नाउ आई आस्क यू क्वेश्चंस। फ्लोराइड वार्निश, ठीक है। फ्लोराइड वार्निश के नाम बोलो, कौन कौन से बोलो फ्लोराइड वार्निश के नाम। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, बोलो बेटा। फ्लोर प्रोटेक्टर, ठीक है। फ्लोर प्रोटेक्टर में कितना रहता है, फ्लोर प्रोटेक्टर, कितना पीपीएम फ्लोराइड रहता है? मैम एक मिनट, 7,000, 7,000। नहीं 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 नहीं, फ्लोर प्रोटेक्टर में कितना होता है बेटा? ड्यूराफेट हाँ, ड्यूराफट में होता है 22600 है ना, ड्यूराफट। एंड फ्लोर प्रोटेक्टर में 7000 है ना। मैं कंफ्यूज होगी, जस्ट मिनट आई चेक। यस मैम, 7,000 है फ्लोर। ओके, ड्यूराफट पर क्वेश्चन आया आई थिंक, ड्यूराफट फ्लोराइड पीपीएम लेवल। 22,600 लगभग है मैम। हाँ, 22600 ड्यूराफट में होता है। एंड फ्लोर प्रोटेक्टर में कितना होता है? 7,000, 7,000। 7000, ठीक है। आई चेक, ठीक है। एंड हाँ, माउथ वॉशेस, ठीक है। माउथ वॉश पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो माउथ वॉश में हम जो माउथ वॉश प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, कितना होता है? 0.2%, ठीक है। क्लोरहेक्सिडिन जो हम प्रोवाइड करते हैं ज्यादातर, ये सोडियम फ्लोराइड वाले, उनमें कितना ml हमें पेशेंट को वो इंस्ट्रक्ट करना चाहिए, कितना ml ले? 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, कितना बोलते हो आप पेशेंट को करने के लिए अपने क्लिनिक्स में? पेशेंट 5 आता है ना, हाँ, 5 ml। यस 5 ml, ठीक है। तो वहां पर जो ज्यादातर कितना, तो 0.2% वाले होते हैं ना, तो कितना? 5 ml के राउंड, ठीक है। अब फ्लोराइड टूथपेस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो बच्चों के जो फ्लोराइड टूथपेस्ट होते हैं उनमें कितना पीपीएम रहता है फ्लोराइड? यूजुअली 500, 400, 500 इस तरीके से रहता है। और जो बड़ों के रहते हैं उनमें कितना रहता है? 1000 to 1500, ठीक है। अब फ्लोराइड थेरेपी, वाटर फ्लोरिडेशन वगैरह ये सब हैं। ओके, नाउ डाइटरी मॉडिफिकेशन, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर इनटेक, ठीक है। मिनिमाइज फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट कंजप्शन, जाइलिटॉल एंड शुगर सब्स्टिट्यूट, दे रिड्यूस बैक्टीरियल एसिड प्रोडक्शन, जाइलिटॉल, ठीक है। बैलेंस डाइट, एनकरेज ओरल सिस्टमिक हेल्थ, oral hygiene practice, brushing with fluoride toothpaste, interdental cleaning aids, use of antimicrobial mouth rinses, ठीक है। सीलेंट एंड प्रोटेक्टिव कोटिंग्स हम देते हैं, है ना। पिट एंड फिशर सीलेंट देते हैं, रेजिन इन्फिल्ट्रेशन टेक्निक्स यूज करते हैं, ठीक है। प्रिवेंट अर्ली इनामल डीमिनरलाइजेशन के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पिट एंड फिशर सीलेंट कहाँ यूज करते हो आप? पोस्टीरियर टीथ में, ठीक है। अगर एंटीरियर टीथ में अगर आप देखते हो कि व्हाइट स्पॉट हो गए हैं, तो वहां पर आप क्या यूज करते हो? रेजिन इन्फिल्ट्रेशन टेक्निक्स, क्या यूज करना है? अगर आपने बच्चे में देखा, बड़े में देखा कि उसका सर्वाइकल केरीज, सॉरी, सर्वाइकल एरियाज में केरीज हो रहा है, मतलब व्हाइट स्पॉट हो रहा है, तो वहां पर आप क्या यूज करोगे? रेजिन इन्फिल्ट्रेशन टेक्निक्स, ठीक है। Probiotic and microbial therapy. Use of probiotics enter beneficial bacteria to out compete carogenic species. ठीक है। तो प्रोबायोटिक्स, अब एक्चुअली केरीज वैक्सीन पर भी काम हो रहा है ना।
तो अब कहते हैं कि हम जो ये हार्मफुल बैक्टीरिया है उसकी जगह बेनिफिशियल बैक्टीरिया पहुंचा दें जो कि डिफेंस का काम करता है, ठीक है, यूज ऑफ प्रोबायोटिक्स। बैक्टीरियोफेज थेरेपी टारगेट स्पेसिफिक हार्मफुल ओरल बैक्टीरिया, कि वो पर्टिकुलरली उसको टारगेट करेगा, ठीक है। एक मजस्ट में टेल यू अबाउट द प्रोबायोटिक्स, कौन से बैक्टीरिया हैं यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, अब न्यू डेवलपमेंट केरीज मैनेजमेंट में क्या आ गया, एक तो सिल्वर डायमंड फ्लोराइड आ गया है, ठीक है, बच्चों में काफी हम लोग यूज करते हैं। ये केरीज के प्रोग्रेशन को अरेस्ट कर देता है, ठीक है। अब जो छोटे बच्चे होते हैं वो बर्ड्स नहीं लगाने देते हैं, ठीक है, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, या फिर आपको वो क्या बोलते हैं, इवन हैंड हैंड इंस्ट्रूमेंट भी नहीं करने देते, तो हम क्या करते हैं, उनको सिल्वर डायमंड फ्लोराइड लगाते हैं, ठीक है। ये जब लगाते हैं तो इट अरेस्ट केरीज प्रोग्रेशन। तो लेकिन वो टूथ का कलर कैसा हो जाएगा, चेंज होता है, ब्लैक हो जाता है सिल्वर के कारण, ठीक है, लेकिन केरीज वहीं का वहीं प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है। तो हम ये अप्लाई करते हैं बच्चों को 6 मंथ में, हर 6 मंथ में, ताकि केरीज वहीं का वहीं रुक जाए, आगे प्रोग्रेस ना करे, ठीक है। मतलब उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़े अभी, है ना, उसको, या पल्पेक्टमी प्रोसीजर के लिए ना जाए। जब बच्चा बड़ा होगा फिर हम उस पर, जब थोड़ा सा वो हो जाएगा, फिर हम उनको कवर कर देते हैं, ठीक है, जीआईसी से। फिर उसके बाद हम स्ट्रिप क्राउन देते हैं। तो सिल्वर डायमंड फ्लोराइड एजेंट इज वेरी गुड, इट अरेस्ट केरीज प्रोग्रेशन, इट इज वेरी वैल्यूएबल थिंग अगर आप अपने क्लिनिक्स में यूज करते। इवन मतलब मेरा एक टूथ था, आई एम टेलिंग यू माय प्रैक्टिकल एग्जांपल, कि इसमें सेकेंड वो प्रॉक्सिमल केरीज हुई है, और मतलब आई एम वेरी प्रोन टू केरीज, तो बहुत जल्दी रैम्पेंट केरीज मुझे होती है। तो इसमें ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, लेकिन क्या सेकेंडरी केरीज मतलब होता है ना कि मार्जिन से लीकेज होना, तो केरीज प्रोग्रेस्ड। सो आई वेंट फॉर द, मतलब कि दोबारा से री रजिस्ट्रेशन के लिए। तो केरीज रिमूव करते हुए मेरा पल्प एक्सपोज हो गया, समझ रहे हो, Yes. एंड लेकिन उसको हमने क्या किया, वहीं पर सिल्वर डायमंड फ्लोराइड लगा दिया, ठीक है, और उसको जीआईसी लगा कंपोजिट से बिल्ड कर दिया। अभी तक कितने साल हो गए टूथ में कोई वो नहीं है, मतलब इट्स नॉट सेंसिटिव एट ऑल, बिल्कुल वहीं का वहीं केरीज रुक जाता है। Yes. तो ये अगर जैसे आप अपने जो डीप कैविटी वाले पेशेंट्स होते हो ना, उनमें अगर आप सिल्वर डायमंड फ्लोराइड लगा दो तो इट इज वेरी इफेक्टिव। उसके बाद आप ऊपर से रिस्टोरेशन कर, अंदर का ब्लैक थोड़ा दिख रहा है, बस ये है कि उसके बाद थोड़ा सा सिल्वर डायमंड फ्लोराइड का ना ह्यू आता है ब्लैक, तो मार्जिन थोड़ी ब्लैक दिखेंगी, तो मार्जिनल्स ब्लैक दिखेंगी, लेकिन वहां पर किरीज मतलब अरेस्ट हो जाती हो, आगे बढ़ेगी नहीं। Yes. ये हम क्यों कर रहे हैं, हम अननेसेसरी टू स्ट्रक्चर नहीं गंवाना चाहते, समझ रहे हो, कि वी Yes. जस्ट रिमूव द इन्फेक्टेड किरीज एंड लीव द अरेस्टेड किरीज, ओवर दैट वी अप्लाई द सिल्वर डायमंड फ्लोराइड, ठीक है। और बच्चों में तो वो भी नहीं कि आप इन्फेक्टेड भी पड़े रहने देते हो, सीप के ऊपर सिल्वर डायमंड फ्लोराइड लगा देते हो, No. ठीक है। ए ट्रॉमेटिक रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है, हम रिमूव करते हैं केरीज विद हैंड इंस्ट्रूमेंट एंड रिस्टोर्ड विद द ग्लास आयनोमस सीमेंट, ठीक है। रेजिन इन्फिल्ट्रेशन टेक्निक इज यूज्ड इन अर्ली केरियस लीजन, की व्हाइट स्पॉट लीजन जो होते हैं उनको रिस्टोर करने के लिए होता है, मैनेज करने के लिए, ठीक है। अब आगे एडवांसेस इन रेस्टोरेटिव मटेरियल्स, अब बायोएक्टिव ग्लास कंपोजिट आ गया है। तो बेसिकली बायोएक्टिव ग्लास कंपोजिट क्या है, इट रिलीजेस मिनरल टू प्रमोट रीमिनरलाइजेशन, ठीक है, तो ये रीमिनरलाइजेशन करता है। अब जैसे बायोएक्टिव ग्लास और किस किस में, कौन से टूथपेस्ट में है बायोएक्टिव ग्लास, बताओ मुझे। मैम रीमीन। हाँ, रीमिन में है, नोवामिन में है, ठीक है, इनमें बायोएक्टिव ग्लास है, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट बेस्ड मटेरियल्स क्या होते हैं, बेसिकली एनहांसेस इनामल रिपेयर, कैल्शियम फॉस्फेट बेस्ड मटेरियल। स्मार्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल्स क्या होते हैं, रिलीज करते हैं फ्लोराइड एंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, ठीक है। डिजिटल एंड एआई बेस्ड केरीज डिटेक्शन अब टूल्स आ गए हैं, ठीक है, एआई जस्ट मिनट, की मशीन लर्निंग लॉगिंग इंप्रूव अर्ली डिटेक्शन एक्यूरेसी, ऑटोमेटेड केरीज असेसमेंट टूल, ठीक है। जेनेटिक एंड सलाइवरी बायोमार्कर रिसर्चर्स आर देयर to detect post-genetic susceptibility studies, salivary markers are also have come in the market. Immunization vaccination therapy, development of caries vaccine target Streptococcus mutans, and monoclonal antibody therapy neutralizes carcinogenic bacteria.
ठीक है, नाउ विल कवर अप द क्वेश्चंस, ठीक है, जल्दी। ओके, रिसर्च मेथड, ये तो हमें पता है, ठीक है, प्रिवेंशन स्ट्रेटजी, न्यू डेवलपमेंट क्या क्या हुए हैं, ठीक है, एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमर्जिंग डायग्नोस्टिक टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग अर्ली कैरियर्स लीजन, कौन सा है, फ्लोरेसेंस इमेजिंग, ठीक है, ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माइक्रो कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है, माइक्रोसिटी इन डेंटल कैरियर्स रिसर्च, टू क्रिएट 3D इमेजेस ऑफ डीमिनरलाइज्ड लीजन, ठीक है, बेसिकली क्या है, जैसे सीबीसीटी होता है ना, हम सीबीसीटी करते हैं, इट्स अ माइक्रो कंप्यूटर टोमोग्राफी, तो बेसिकली स्लाइसेस प्रिपेयर होती हैं, ठीक है, तो जो लीजन्स होते हैं, मतलब इट्स इमेजिंग टेक्निक, तो 3D इमेज बताता है डीमिनरलाइज्ड लीजन का कितनी डेप्थ है, कितना क्या है, वो सारी चीजें है ना, इट्स क्रिएट 3D इमेजेस ऑफ डीमिनरलाइज्ड लीजन, which bacteria are primarily associated with the early stage dental caries, अर्ली स्टेज डेंटल कैरीज में कौन सा होगा बेटा, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, म्यूटेंस, यस, ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इन डेंटल कैरीज रिसर्च, डिटेक्टिंग अर्ली इनामल डीमिनरलाइजेशन, ठीक है, ये जितने भी मेथड्स हैं ना, ये सब अर्ली डीमिनरलाइजेशन को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, विच मेथड इज कॉमनली यूज टू असेस रीमिनरलाइजेशन पोटेंशियल इन विट्रो, अब इन विट्रो की बात कर रहे हैं, ठीक है, इन विट्रो में हम असेस कर रहे हैं कि रीमिनरलाइजेशन एक्शन कितना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा, विकर्स हार्डनेस टेस्ट, विच मेथड इज कॉमनली यूज टू असेस रीमिनरलाइजिंग पोटेंशियल इन विट्रो, कि उसकी रीमिनरलाइजिंग पोटेंशियल कितनी है, मतलब वो स्ट्रांग हुआ कि नहीं हुआ, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, विकर्स हार्डनेस टेस्ट, ठीक है, हम उसे, मतलब आपका जो भी कोई सैंपल लिया आपने, ठीक है, जो रीमिनरलाइज्ड हो गया, और वो तो आप क्या करोगे, पहले उसे उसमें डालोगे, है ना, आप उसका हार्डनेस चेक करना चाहते हो कि रीमिनरलाइज हुआ कि नहीं हुआ, उसका पहले का सैंपल और रीमिनरलाइज सैंपल, तो उसमें विकर्स हार्डनेस टेस्ट यूज करते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आया पिछले बार, नूप हार्डनेस टेस्ट पर भी क्वेश्चन आया हुआ था, है ना, नूप हार्डनेस, ब्रिनल्स हार्डनेस टेस्ट, है ना, तो ये हम कहाँ कहाँ यूज होते हैं, बताओगे मुझे थोड़ा सा, विकर्स हार्डनेस टेस्ट, आइडिया नहीं है। I'll tell you, you know, just a minute. I have gone through student morning. Okay. Okay, last year this was question there on because uh, just a minute. Okay, please listen. Huh? Okay. Just a viscous hardness is used for very thin materials or coatings. ठीक है, बहुत थिन मटेरियल और कोटिंग्स के लिए यूज होता है, इसमें डायमंड पिरामिड यूज करते हैं, डायगोनल लेंथ ऑफ स्क्वायर इंडेंटेशन, हम उसकी इंडेंटेशन चेक करते हैं, जैसे सिरामिक में यूज करते हैं, थिन फिल्म्स हो गई, इनामल हो गया, उसमें हम चेक करेंगे, ठीक है, इनामल मतलब कि हमने रीमिनरलाइजिंग पोटेंशियल चेक करने के लिए इसमें यूज करेंगे, स्मॉल एरियाज एंड माइक्रो स्ट्रक्चर टेस्टिंग, ठीक है, विकर्स हार्डनेस टेस्ट, एंड जो हमारा जो क्वेश्चन आया था पीछे वो नूप हार्डनेस टेस्ट पर आया था, ठीक है, तो वो कहाँ पर यूज होता है, उसमें भी लिखा है ब्रिटल मटेरियल लाइक सिरामिक्स, इनामल, ग्लास, इसमें असिमेट्रिक डायमंड यूज करते हैं, लॉन्ग डायगोनल ऑफ द इंडियन, आइडियल फॉर वेरी स्मॉल सैंपल, लो लोड टेस्टिंग, एग्जांपल डेंटल इनामल, सिरामिक्स इन रिस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री, ये टॉपिक थोड़ा सा वो है, देखो इसमें मतलब कंक्लूजन क्या है, जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं उनके लिए आप फॉर्म ब्रिटल मटेरियल लाइक सिरामिक, इनामल, ग्लास, नूप हार्डनेस इज द मोस्ट सुइटेबल वन, ठीक है, फॉर जनरल मेटल्स लाइक, अगर जनरल मेटल है, कोई मेटल को आप चेक करोगे तो उसमें आप ब्रिनल यूज करोगे, ब्रिनल और रॉकवेल, ठीक है, एंड फॉर थिन सेक्शंस और माइक्रो हार्डनेस चेक करनी है तो विकर्स और नूप दोनों चेक कर सकते हो, आप पे नूप तो ऑप्शन है नहीं, तो सेकंड हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, विकर्स हार्डनेस टेस्ट,
ठीक है, यस आई शेयर, है ना, ये जो है आपको, ये जो मटेरियल है मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है, ग्रुप में। यस और ये जो पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम से पहले प्लीज प्लीज गो थ्रू देम, है ना, जो मैं दे रही हूँ। यस ओके, प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी, विच फ्लोराइड कंसेंट्रेशन रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन अंडर 6 years ओल्ड इन टूथपेस्ट। 6 years कम का बच्चा है, 6 years से कम का, तो हम कितना करेंगे? अब देखो यहाँ पर जो ऑप्शंस है, ये सब काफी हाई फ्लोराइड वाले हैं। 500 to 1000 स्टिल सबसे कम है, तो हम इसको टिक करें। मुझे 6 years से कम के बच्चों को हम 500 400 इस तरीके से ही देते हैं, ठीक है। और 3 years से नीचे के बच्चों को हम फ्लोराइड नहीं देते हैं, फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट देते हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लोराइड इन प्रिवेंटिंग केरीज? क्या करता है बेसिकली ये? केरीज एनहांस, दिस इज प्रमोटिंग इनामल रीमिनलाइजेशन, ठीक है। ओके, ओके, व्हाट इज द की एडवांटेज ऑफ केजिन फॉस्फोपेप्टाइड amorphous कैल्शियम फॉस्फेट, दैट इज आल्सो नोन एज सीपीपी एसीपी? क्या करता है ये बेसिकली? एनहांसर इनामल रीमिनलाइजेशन, ठीक है। ये एक टूथपेस्ट आता है, उसके नाम से, किसके नाम से? आरसी, कौन सा, मूज, जीसी मूज के नाम से आता है बेटा, ठीक है। ये इनामल रीमिनलाइजेशन होता है इसमें, और इसके अंदर केजिन फॉस्फोपेप्टाइड अमरफस कैल्शियम फॉस्फेट रहता है, जिसको सीपीपी एसीपी बोलते हैं। ये बेसिकली बहुत ज्यादा इनामल का रीमिनलाइजेशन कराता है, यस ठीक है। तो ये अराउंड 1500 1400 ऐसे कुछ उसका प्राइस होता है। ये अमल का मतलब आपका अमेजोन पे 800 या 1000 रुपीज में आपको मिल जाता है। जो आपके एब्रेजन वाले पेशेंट्स हैं, है ना, या जहाँ पर सेंसिटिव इश्यूज रहते हैं जिन पेशेंट को टीथ में, आप उनको ये पेस्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हो, जीसी टूथ मूव्स, ठीक है। जीसी टूथ मूव्स प्लस में फ्लोराइड भी रहता है एक्स्ट्रा साथ में। जाइलिटोल हेल्प्स प्रिवेंट डेंटल केरीज बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ओके, विच प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स हैव बीन स्टडीड फॉर द रोल इन केरीज प्रिवेंशन? तो यहाँ पर कौन सा है ये? ए ऑप्शन। अभी मैं आपसे पूछ रही थी ना, प्रोबायोटिक्स, मतलब प्रोबायोटिक्स में एक तो लैक्टोबैसिलस है, ठीक है। यस हमारा लैक्टोबैसिलस और किस में रहता है? दही में भी रहता है, उसमें प्रोबायोटिक्स रहता है ना, यस है ना। और दूसरा बाइफिडो बैक्टीरियम ब्रेवे, ठीक है। जस्ट मिनट, मैंने अभी, आपने मुझसे पूछा आया था क्वेश्चन, तो मैंने ये जस्ट टाइप, आई टेल यू अबाउट दिस, ठीक है। सम कॉमनली यूज प्रोबायोटिक बैक्टीरिया इन ओरल हेल्थ, ठीक है। फर्स्ट है लैक्टोबैसिलस रैमनोसस, ठीक है, जीसी। एक है लैक्टोबैसिलस र्यूटेरी, जिसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है। फिर है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, स्ट्रेप्टोकोकस सैलिवेरियस, K12 एंड M18, बाइफिडोबैक्टीरियम लैक्टिस। तो ये नेम्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स कौन सी हैं? गॉट इट? ये मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए उसमें कौन सा होना चाहिए? लैक्टोबैसिलस र्यूटेरी एंड बाइफिडोबैक्टीरियम ब्रीवी, ठीक है। देर ऑफन यूज इन लोजेंजेस, च्यूइंग गम्स और योगर्ट फॉर ओरल हेल्थ बेनिफिट। तो आजकल जो लोजेंजेस आती हैं बच्चों के लिए ना, च्यूइंग गम्स, और उनमें ऑलरेडी ये मिक्स की होती हैं बैक्टीरिया। न्यू डेवलपमेंट इन caries मैनेजमेंट, which innovative bioactive material is used for remineralizing early caries lesion? नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है। सिल्वर डायमंड फ्लोराइड इज प्राइमरी यूज्ड फॉर अरेस्टिंग एक्टिव केरीज, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बायो, है ना, मैंने बताया था बच्चों में हम यूज करते हैं, क्योंकि हम वहां पर हम ना इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं ना मशीन लगा सकते हैं। जो छोटे बच्चे आते हैं तो उनमें क्या करते हैं, हम एसडीएफ अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और आजकल जो एसडीएफ होता है, जो पहले था, वो उसमें एक्चुअली क्या, वो सिल्वर ब्लैक कर देता था। अब न्यू एसडीएफ आ गए हैं जिनमें कि वो ब्लैक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बायोमिमेटिक क्रिमिनलाइजिंग एजेंट? बायोमिमेटिक क्रिमिनलाइजिंग एजेंट क्या होता है कि वो आपका डेंटिन को वो करेगा, ठीक है, restore simultaneous natural enamel repair. What is the function of biomimetic remineralizing agent? नेचुरल इनामल रिपेयर, ओके। मैं बायोमिमेटिक रिमिनराइज एजेंट के बारे में आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देती हूँ। ओके,
Now, which laser technology has been explored for early caries detection? That is a एडीएम यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? एडीएम आर्गन गार्नेट लेजर करके है, ठीक है, ERYAG लेजर. बायोएक्टिव ग्लास इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू डेंटल मटेरियल्स फॉर क्यों यूज किया? ऑल ऑफ द अबव, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, फ्लोराइड रिलीज, डेंटिन रीमिनलाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है. अब नाउ वील कम द कॉन्सेप्ट बायोमिमेटिक remineralizing agent mimic the natural process of dentin formation by promoting mineral deposition in demineralized area, helping restore dentin structure and function. Example include, इसमें इन्होंने इनामल रिपेयर बोला था ना? इनामल रीमिनरलाइजेशन. हाँ, बायोमिमेटिक का, जस्ट अ मिनट. बायोमिमेटिक रिमिनराइजेशन, बायोएक्टिव ग्लास, केजिन, ये CPP ACP पेस्ट आता है, सेल्फ असेंबलिंग पेप्टाइड्स आते हैं. दे डोंट जस्ट हेल्प डिमिनराइजेशन, दे एक्टिवली रिबिल्ड द लॉस्ट टू स्ट्रक्चर, स्पेशली डेंटिन. ओके, अब क्या है यहाँ पर? जस्ट अ मिनट. क्वेश्चन इज correct answer submit. Now, biomimetic remineralization agent are designed to mimic natural biological process and help regenerate to rebuild enamel-like structure, especially during early caries. ठीक है. दे प्रमोट इनामल रिपेयर बाय रीमिनराइजिंग बाय डीमिनराइज इनामल, नॉट जस्ट डेंटिन. ये दोनों ही रिपेयर करता है एक्चुअली. सैमल्टेट नेचुरल इनामल रिपेयर इज अ मोस्ट एक्यूरेट जनरल फंक्शन. तो इसका जो मोस्ट है वो इनामल फंक्शन है, ठीक है. इनामल को रिपेयर करना इसका ज्यादा क्लोज है, ठीक है, बायोमिमेटिक का. ओके. Emerging trends in caries research important है. The use of artificial intelligence in dental caries detection focuses on everything, all of the above. ठीक है. Early diagnosis, personalized treatment planning, predicting caries risk based on inhabit. Which novel method is being explored for managing deep caries lesion? Deep caries lesion को मैनेज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं आजकल? Stem cells based pulp regeneration. ठीक है. What is the role of symbiotics in caries prevention? Symbiotics, enhancing the growth of beneficial bacteria. ठीक है. Which of the following is a non-invasive method for treating incipient caries? Resin infiltration. Which of the following is a non-invasive method? Incipient caries में resin infiltration is the correct answer. मैंने बताया था ना, anterior teeth में हम use करते हैं, है ना? Okay. Which AI based tool is commonly used for caries risk assessment? डीप लर्निंग एल्गोरिदम. ये थोड़ा सा वो है, ठीक है. पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डेंटल केरीज, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. व्हाट इज द क्रिटिकल पीएच बिलो विच इनामल डीमिनरलाइजेशन अकर्स? 5.5. ठीक है. विच एसिड इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर इनामल डिसोल्यूशन केरीज? लैक्टिक एसिड. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द केरीज प्रोसेस? फ्लोराइड पॉइजनिंग. ठीक है. द इनिशियल स्टेज ऑफ केरीज फॉर्मेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय formation of a biofilm. Which of the following is an early which of the early clinical sign of enamel caries? White spot lesion. ठीक है. Which enzyme in saliva helps buffer acid and protect against caries? तो carbonic anhydrase. ठीक है. Remember this name, carbonic anhydrase. Which enzyme in saliva helps buffer acid and protect against? तो caries है ना, वो लोग क्वेश्चन डालते ही डालते हैं. तो पीएच पर भी क्वेश्चंस होते हैं, रिसेंट डायग्नोस्टिक उस पर भी रहते हैं, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट है. कार्बोनिक एनहाइड्रेस. द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ अनस्टिमुलेटेड सलाइवा इज, कि आपने जब स्टिमुलेट नहीं किया सलाइवा को, ठीक है, कि आप नॉर्मली पेशेंट है, ठीक है. स्टिमुलेटेड क्या होता है? पैराफिन चेविंग कराते हैं, ठीक है. तो उस वक्त कितना रहता है हमारा पीएच? कितना रहता है? 6.7 to 7.5. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है और इसके पूछने के चांस भी ज्यादा है.
ठीक है। द नॉर्मल, इसको आप लिख लो अपने नोट्स में अलग से, द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ अनस्टिमुलेटेड सलाइवा इज 6.7 टू 7.5 कि पीएच के क्वेश्चंस यूजुअली पूछते हैं। जीरोस्टोमिया इज अ रिस्क फैक्टर फॉर केरीज बिकॉज क्या होगा, ड्राई माउथ होगा तो क्या होगा, रिस्क फैक्टर क्यों है? इट रिड्यूसेस salivary फ्लो एंड बफरिंग कैपेसिटी। ठीक है। Which salivary component plays a role in remineralization? Calcium and phosphate ions. Which effect does increased salivary flow have on caries risk? Salivary flow बढ़ेगा तो caries risk क्या होगा, कम हो जाएगा, decreased। ठीक है। caries risk assessment diagnostic. Which of the following is a caries risk assessment tool? कौन सा इसमें? कैमरा। ठीक है। caries assessment management and क्या है कैमरे का फुल फॉर्म? caries management इसको बोलते हैं, एक मिनट, आई टेल अबाउट द कैमरा। कैमरा हो गया, कैट हो गया, केरियोग्राम हो गया, ये सारे कैरियर रिस्क असेसमेंट टूल होते हैं। ठीक है। डिवेप्टीज इंडेक्स, ठीक है। आईसीडीएस, ये भी वो है, आइसबर्ग जो वो था ना केरीज का दिया था, वो वाला है एक डास। ठीक है। कि जो केरीज है, मतलब बेसिकली कि हमें टिप ऑफ दिख रही है, बहुत सारे केरीज तो अंदर रहता है, मतलब कि जब हम देखते हैं पेशेंट का तो हमें ऊपर से क्या दिखता है, छोटे से पिन पॉइंट केरीज दिखता है, लेकिन हम अंदर रिमूव करने जाते तो हमें कितना बड़ा केरीज दिखता है ना? तो वो है एक डास। तो जस्ट अ मिनट, हिमांशु, which of the following diagnostic technique uses laser fluorescence diagnodent? ठीक है। ओके, जस्ट अ मिनट। The International Caries Detection and Assessment System, ठीक है, this is ICDAS, classifies caries based on radiograph images only, clinical visual histopathological, it's I think radiographically, just a minute, क्लिनिकल विजिबल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल विजुअल एग्जामिनेशन। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं एक बार, क्लिनिकल विजुअल एग्जामिनेशन। ओके, जस्ट अ मिनट, ये आपका आ गया आंसर इसका। ओके, कैमरे का फुल फॉर्म था केरीज मैनेजमेंट बाय रिस्क असेसमेंट। ठीक है। तो आप पहले ही पेशेंट का रिस्क असेसमेंट करते हो, उससे आप केरीज मैनेज करते हो, कैमरा टेक्निक। ठीक है। एंड आईसीडीएस, एक बार आईसीडीएस, इसमें भी इनके क्लासिफिकेशन है आईसीडीएस का भी, क्लिनिकल विजुअल एग्जामिनेशन का। ओके, व्हाट इज अ प्राइमरी, ओके ये आ गया, आई टेल यू। ठीक है। इसमें 0 to 6 की स्कोरिंग है। 0 इज साउंड टूथ। ठीक है। 1 to 2 इज अर्ली इनामल लीजन, दैट इज अ वाइट स्पॉट। ठीक है। 3 to 4 इज लीजन विद इनामल ब्रेकडाउन और शेडोइंग इन डेंटिन, एंड 5-6 इज कैविटेड डेंटिन लीजन्स। मतलब 1 to 2 है अर्ली इनामल लीजन, 3 to 4 है लीजन विद इनामल, एंड 5 to 6 है कैविटेड डेंटिन लीजन। इंपॉर्टेंस का, डिटेक्ट केरीज बिफोर कैविटेशन, helps in planning preventive or restorative treatment, widely used in clinical research and public health. Okay, which of the following method can detect caries without using radiation? तो जिसमें रेडिएशन नहीं यूज होते, देखो आपके पेरिपेकल एक्सरे में है, पेनोग्राफिक में है, कोन बीम सिटी में भी है, ट्रांस इल्यूमिनेशन में नहीं होता है। ठीक है। ये डिवाइसेस होते हैं छोटे छोटे जो कि लेजर वो करते हैं। ठीक है। Which of the following material is known for its ability to release fluoride over time? GIC. What is the role of stannous fluoride in caries prevention? हमने पढ़ा था ना stannous fluoride के बारे में। कितना होता है इसमें, परसेंटेज कितना होता है, और सबसे ज्यादा केरीज किससे होता है, मतलब रुकता है किससे, प्रिवेंटिव स्टेनस फ्लोराइड से होता है ना, एंटीबैक्टीरियल एक्शन, इनामल रिडक्शन ऑफ डेंटल हाइपर सेंसिटिव। एक तो सोडियम फ्लोराइड था, स्टेनस फ्लोराइड, और ईपीएफ जेल था, है ना, जब ने पढ़ा था। यस।
प्लीज जो भी देते हैं उसको आपके उसमें ग्रुप में आपके इकट्ठे होते जा रहे नोट्स, तो वो नोट्स ना रिवाइज करते रहना बीच बीच में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर सब्स्टिट्यूट हैव बीन फाउंड टू बी कैरियोस्टैटिक? xylitol fluoride varnish application is recommended twice a year, ठीक है, every 6 month, ठीक है। Okay, what is the primary benefit of silver diamond fluoride in caries management? It arrest caries progression, ठीक है। caries management and restorative technique, which of the following is a minimally invasive caries management approach? This is step wise excavation, ठीक है। कंप्लीट केरीज एक्सकेवेशन नहीं है आप केरीज उसमें, ठीक है। इसे स्टेप वाइज एक्सकेवेशन कि आप अफेक्टेड इन्फेक्टेड केरीज रिमूव करोगे धीरे 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 स्टेप वाइज, ठीक है। अफेक्टेड को यू लेफ्ट फॉर रिमिनरलाइजेशन, ठीक है, कि वो रिमिनरलाइज हो जाएगा। रेजिन इन्फिल्ट्रेशन इज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग नॉन कैविटेड इनामल लीजन्स इन white spot. What is the advantage of high viscosity glass ionomer in traumatic restorative treatment? क्या एडवांटेज होता है? एक तो हाई फ्लोराइड रिलीज, ठीक है, डज नॉट रिक्वायर एनेस्थीसिया, कैन बी प्लेस्ड विदाउट ड्रिलिंग, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। तो वहां पर मशीन तो होता नहीं है हमारे पास, ठीक है, एआरटी में तो हम क्या करते हैं, खाली हैंड इंस्ट्रूमेंट से क्लीन करते हैं कैविटी को और फिल करते जाते हैं। Which dental material has the highest degree of wear resistance? Wear resistance किस में ज्यादा होता है? अब देखो यहाँ पर क्या है, अमलगम में ज्यादा है composite से, ठीक है। What is the main reason for the failure of composite restoration caries prone patient? देखिए क्यों होता है फेलियर composite restoration का caries prone में? हाई पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज, ठीक है। अमलगम में क्या होता है, हमने पढ़ा है ना, अमलगम में मार्जिन के यहाँ पर वापस से सेल्फ सील्ड हो जाती है, सेल्फ सील्ड मार्जिन हो जाती हैं, है ना वहाँ पर। जबकि इसमें क्या है, इसमें पॉलीमराइज श्रिंकेज रहता है केरीज कंपोजिट में, तो वहां से मार्जिनल लीकेज रहता है, ठीक है। तो दिस इज अ चैप्टर, ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच विद इंटीग्रेशन जेरियाट्रिक डेंटिस्ट्री, दिस इज अ वेरी सिंपल चैप्टर, ठीक है, कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच विद इंटीग्रेशन जेरियाट्रिक डेंटिस्ट्री, कि आप ओल्ड पेशेंट्स में क्या यूज करोगे, बच्चों में क्या यूज करोगे, ठीक है, अलग अलग रहता है सबका कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री थोड़ा सा। जैसे कि जस्ट विल गो थ्रू द चार्ट ओनली, ज्यादा कुछ है नहीं एक्चुअली। हाँ, लाइक हाँ, ओके, कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री, ठीक है। कंजर्वेटिव मतलब कि यू आर प्रिजर्विंग द टूथ स्ट्रक्चर एक्चुअली, ठीक है, ठीक है। अब जैसे हम पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या क्या आता है, एआरटी हो गया, प्रिवेंटिव रेजिन रेस्टोरेशन हो गया, जीआईसी हो गया, फ्लोराइड रिलीज, स्पेस मेंटेनेंस, बिहेवियर मैनेजमेंट, ये सब पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री का होता है कंजर्वेटिव। एंड जीरियाट्रिक में क्या है, बेसिकली वहाँ पर रूट केरीज ज्यादा होंगे तो रूट केरीज मैनेजमेंट हो गया, सेंसिटिव इश्यूज रहते हैं, बायोएक्टिव मटेरियल्स, रेस्टोरेशन फॉर डेंचर, मिनिमम इन्वेजिव डेंटिस्ट्री, ठीक है। पेरियो में क्या रहता है, जिंजरवल मार्जिन्स मेंटेनर, क्राउन लेंथिंग, सब जिंजरवल केरीज, एंडोडोंटिक्स में पल्प प्रोटेक्शन, पोस्ट एंड कोर, वाइटल पल्प थेरेपी। अब लास्ट टाइम क्वेश्चन था पोस्ट एंड कोर पे, ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द पोस्ट, कितना होता है पोस्ट लेंथ का, 2/3 ऑफ द रूट लेंथ। रूट लेंथ का 2/3 होता है कि क्राउन से उसका 2/3 होता है? मैम 2/3 ऑफ रूट लेंथ, हम्म, 1/3 छोड़ देते हैं, 2/3 ले लेते हैं। यस, करेक्ट, ठीक है। प्रोस्थोडोंटिक्स में अबटमेंट टीथ, ऑक्लूजल वियर, रीइंफोर्समेंट, ये सब चीजें प्रोस्थो में हम कंसिडर करते हैं ना। अबटमेंट टीथ वहां पर हम कोशिश करते हैं हमें एक अबटमेंट टीथ मिल जाए, है ना, अबटमेंट कंजर्वेशन करने का, ठीक है। ऑक्लूजल वियर्स हो गए तो उनको हम रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं कि फुल माउथ रिहेबिलिटेशंस करते हैं हम, ऑक्लूजल स्प्लिंट बना देते हैं, रीइंफोर्समेंट। ऑर्थोडोंटिक्स में स्पेस मैनेज करना, रीशेपिंग टीथ एंड मैनेजिंग, दीज ऑल आर द अलग अलग कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री हर एक डिपार्टमेंट का अपना, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू द कि कैविटी बनाया रिस्टोर कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके, तो व्हाट इज द आइडियल पोजीशन, जस्ट अ मिनट गो थ्रू द, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ये लोग आप लोग भी इन एमसीक्यूज को कर सकते, सिंपल एमसीक्यूज इस चैप्टर के। व्हाट इज द आइडियल पोजीशन ऑफ रिस्टोरेटिव मार्जिन टू प्रिवेंट पेरिडोंटल इश्यूज? तो कैसा सुप्रा जिंजावल रहना चाहिए ना, अगर सब जिंजावल है तो प्लाक एक्यूमुलेशन होगा, ठीक है। विच पेरिडोंटल प्रोसीजर इज
ओके, विच पेरियोडोंटल प्रोसेस ऑफन रिक्वायर्ड बिफोर प्लेसिंग डीप रिस्ट्रेशन? हम डीप रिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले कौन सा पेरियोडोंटल प्रोसीजर चाहिए डीप रिस्ट्रेशंस के लिए? अब क्या चाहिए वहां पर आपका? क्राउड लेंथनिंग। क्राउन लेंथनिंग, ओके, ठीक है, ताकि आपके मार्जिन्स सबजिंजेबल ना हो, ठीक है ना? द मेन कंसर्न इन प्लेसिंग, एक्चुअली दिस इज अ, मतलब कि आपकी जब आप रिस्ट्रिक्शंस करते हो तो आपको दूसरे डिपार्टमेंट की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो किस किस उसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है? दिस इज द मेन कंसर्न प्लेसिंग सबजिंजेबल रिस्ट्रिक्शन इज प्रिवेंटिंग जिंजेबल इरिटेशन, ठीक है? Which material is preferred for restoration patient with poor oral hygiene? Poor oral hygiene तो आप क्या मटेरियल प्रेफर करोगे? Composite, amalgam, GIC, porcelain, कौन सा करोगे? Yes. GIC. The biological width includes which of the following component? What is the biological width? क्या होती है? जंक्शनल एपिथेलियम से लेकर आपका एल्वेलर क्रेस्टल बोन तक का डिस्टेंस को हम बायोलॉजिकल विड्थ बोलते हैं ना? क्या Yes. होता है? इट्स अ, ओके, इट्स अ जंक्शनल एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू अटैचमेंट, ठीक है? ओके, विच कंजर्वेटिव प्रोसीजर इज प्रेफर्ड बिफोर कंसिडरिंग एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट? अगर हम एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट करने से पहले हम क्या प्रेफर करते हैं? Lab आईपीसी pressure. करने की कोशिश करते हैं ना कि हम उसे बचा ले दांत को, Yes. ठीक है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन यूज मटेरियल फॉर डायरेक्ट पल्प कैपिंग? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? Calcium. Which material is currently the gold standard for pexification in immature teeth? MTA. MTA. पिछली बार इससे क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द पीएच ऑफ द एमटीए? कितना होता है पीएच एमटीए का? 12, ठीक है? A post and core restoration is used in which clinical situation? यहाँ पर आपका बेसिकली सीवियरली डैमेज्ड पोस्ट एंड कोर कहाँ करोगे? Severely आपका सीवियरली डैमेज crown. एंडोडोंटिक ट्रीटेड होते हैं ना, क्राउन नहीं रहता तभी आप करते हो। Which endodontic process involve removing the pulp while preserving the radicular pulp? किसमें होता है कि हम रेडिकुलर पल्प को हम प्रिजर्व करते हैं और ऊपर का रिमूव करते हैं, दैट इज अ पल्पोटॉमी यार, है ना? Pulpotomy. ठीक है। Yes. विच टाइप ऑफ कंजर्वेटिव रेस्ट्रिक्शन कॉमनली यूज्ड एज एन अबटमेंट फॉर एफपीडी? तो हम किन दांतों में कंजर्वेटिव करके एफपीडी में अबटमेंट के लिए यूज करते हैं? हाँ, इनलेज एंड Yeah. ऑनलेज। विच कंजर्वेटिव टेक्निक इज यूजफुल फॉर ऑक्लूजल रिहैबिलिटेशन? ऑक्लूजल रिहैबिलिटेशन के लिए कॉम्पोजिट बिल्डअप, ठीक है? हम तुरंत से ऐसे नहीं लगाते ना कि हम सिरामिक क्राउन दे देते हैं पेशेंट को, ऐसा नहीं करते ना, उसका वीडी चला जाएगा, ठीक है? तो यूजुअली जो एट्रिशन के केसेस आते हैं सबसे पहले तो हम उनका वीडी मेजर करते हैं, उनका कितना वीडी लॉस्ट हुआ है, ठीक है? उसको Yes. आर्टिकुलेट किया जाता है पहले, आर्टिकुलेट करके देखते हैं कितना वीडी लॉस्ट है, ठीक है? कितना हम उनको बढ़ा सकते हैं, फिर हम बाइट लेते हैं, है ना? फिर उसके अकॉर्डिंग हम पहले मॉडल प्रिपेयर करते हैं कितना हम बढ़ाएं, फिर हम उसे कॉम्पोजिट से बिल्ड करके देखते हैं, ठीक है? Yes. कॉम्पोजिट बिल्ड करते हैं या फिर हम उनको टेम्परेरी क्राउन्स देते हैं, ठीक है, ऑक्लूसिव स्प्रिंट लगाकर, ताकि पेशेंट, पहले हम 1-2 महीने के लिए छोड़ते ताकि उस वीडी पर पेशेंट एडजस्ट हो जाए, है ना? उसके बाद हम फुल माउथ रिहैबिलिटेशन पर जाते हैं, ऐसे ही करते हैं ना? Yes. Which principle is critical when preparing a tooth for a conservative prosthetic restoration? Periodic reduction. Minimal tooth reduction. Which of the following is a conservative alternative full veneers? फुल विनियर्स, फुल क्राउन नहीं देना तो आप क्या करोगे वहां पर? विनियर्स दोगे ना, Veneers. है ना? अब Yes. पेशेंट के आपने देखा हाइपोप्लास्टिक टीथ है, फ्लोरोसिस है ना, ये सब चीजें हैं, तो पेशेंट को फालतू फुल माउथ क्यों कटिंग करना, उसका पूरा क्राउन कट करके देना, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हम विनियर्स या लैमिनेट्स देते हैं, ठीक है? क्योंकि उनके समय विनियर्स देते हैं, ठीक है, विनियर्स प्रिपरेशन करते हैं, ताकि फिर उसके ऊपर से हम वहां पर ई मैक्स विनियर्स हम उनको सीमेंट कर देते हैं, Cement. ठीक है? अब एंटीरियर टीथ में क्या देते हैं? ई मैक्स देते हैं। पोस्टीरियर टीथ में हम क्या देते हैं? जिरकोनियम देते हैं ना, जिरकोनियम क्राउन्स। ये एंटीरियर में हम ई मैक्स पर जाते हैं। कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड ऑर्थोडोंटिक्स मतलब विच प्रोसीजर कॉमनली परफॉर्म बिफोर प्लेसिंग ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट्स? कौन सा हम पहले करते हैं ब्रैकेट लगाने से पहले? रूट कैनाल ट्रीटमेंट, एनामल माइक्रो क्राउन लेंदी इम्प्लांट, एनामल माइक्रो एब्रेशन।
ठीक है. Only before placing orthodontic brackets. Okay. Enamel microabrasion. Okay. What मैम is the टीचिंग best करते हैं method? ना. हाँ, okay. What is the best method to close small diastema non-invisively? Small diastema है तो हम क्या करेंगे? Composite filling कर देते हैं ना? Okay. Which orthodontic complication can be corrected with conservative dentistry techniques? Orthodontic complication can be corrected. ठीक है कि व्हाइट स्पॉट लीजन हो रखा है, स्केलेटल मालोक्लूजन, इंपैक्टेड टीथ है, ओपन बाइट है, तो व्हाइट स्पॉट लीजन है तो हम उससे कंजर्वेटिव उससे कर सकते हैं करेक्ट, है ना. Which conservative approach is used for space management before orthodontic treatment? Space management करना है before orthodontic treatment से space maintainer, bridges, RCT space maintainers. Which stripping, enamel stripping in orthodontics is used for? क्या होता है enamel stripping? हम space create करते हैं ना lower incisors में. सपोज करो हमें नीड नहीं है, उस पेशेंट को मिनिमल नीड है स्पेसिंग की, ठीक है, कि हम प्रीमोला एक्सट्रैक्ट करें तो उसमें ज़्यादा उसका होगा, माइल्ड क्राउडिंग है तो उसमें हम क्या करते हैं, इनामल स्ट्रिपिंग कर देते हैं ना, कि साइड से प्रॉक्सिमल इनामल स्ट्रिप करके हम निकाल देते हैं, है ना, क्रिएटिंग एक्स्ट्रा स्पेस ताकि वो जो सामने की हल्की माइल्ड क्राउडिंग थी वो रिलीव हो जाए ब्रैकेट लगाने के बाद, ठीक है, क्रिएटिंग एक्स्ट्रा स्पेस, इनामल स्ट्रिपिंग. Okay. Which conservative material is most suitable for root caries in elderly patient in elderly patients? रूट कैरीज में जीआईसी, ठीक है, क्योंकि उसको मॉइस्चर से इतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है. व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ इंक्रीज कैरीज? हम ऊपर कॉम्पोजिट नहीं कर सकते, ठीक है. व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ इंक्रीज कैरीज रिस्क इन एल्डरली पेशेंट? प्राइमरी कॉज क्या होता है इंक्रीज कैरीज रिस्क एल्डरली पेशेंट में? एक तो सलाइवरी हाइपोफंक्शन हो जाता है, एक तो ये भी है, फिर डिक्रीज मेनली इंक्रीज, दिस इज अ बी ऑप्शन एक्चुअली. Okay. Which non-invasive method is used to manage root caries in older patient? और सिल्वर डायमंड फ्लोराइड आप यूज कर सकते हो, ठीक है. Which type of prosthetic restoration commonly placed in elderly patient with multiple missing teeth? All of the above. Complete denture, dental bridge, partial denture, है ना. What is the best approach to manage dental sensitivity in older patient? Fluoride varnish application. ठीक है, तो we finished. So from tomorrow onward we'll start with the endodontics procedures. Okay. We'll give 4 days to finish the endo. Okay. And Yes. ठीक है ना, प्लीज गो थ्रू द योर नोट्स दैट आई हैव गिवन टू यू, ठीक है. Yes. आप Yes. लोग इनको देखो और जो भी एक्स्ट्रा नोट्स मैं क्लास में प्रोवाइड करी उनको भी आप देखना, उन क्वेश्चंस को भी, ठीक है. तो ये दिस आई विल सेंड यू जो भी एक्स्ट्रा मैंने बताया आपको, ठीक है. Yes. ओके चलो वेलकम. सो टुडे ओनली दीपक एंड आशीष हैज कम, है ना. Yes. ठीक है. ओके गुड नाइट. So Good night, let's ma'am. good night.